السلام علیکم. وعلیکم السلام. قدیر قریشی سائنس کی دنیا کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم آج نظریہ ارتقاء کے لیکچر سیریز میں دوسرا لیکچر کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا میں آپ کو اگر آپ نے پہلا لیکچر اٹینڈ نہیں کیا تھا تو میں تھوڑا سا بریف ایک اوور ویو دوں گا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ہم آج کے لیکچر میں چلیں گے. اور یہ جو لیکچر سیریز ہے یہ ہم شروع میں ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ 4 سیشن ہوں گے، لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے اوپن اینڈڈ رکھا جائے. تو ہم اسے سمر لیکچر سیریز کا نام دے رہے ہیں، اور اس میں جب تک ہمیں ضرورت محسوس ہوگی، آپ لوگوں کو ضرورت محسوس ہوگی کہ اور میٹیریل ہمیں شیئر کرنا ہے، اس وقت تک ہم اس کو جاری رکھیں گے. تو پچھلے ہفتے جو ہم نے بات کی تھی وہ تھوڑا سا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سائنٹیفک تھیوری ہوتی کیا ہے، فالسیفائبل ہوتی ہے، یہ ڈیٹا کے بیس پہ ہوتی ہے، اس قسم کی چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. اس کے بعد ہم نے زمین پر زندگی کی تاریخ ڈسکس کی تھی. 4.5 ارب سال پہلے زمین بنی، اور اس کے بعد تقریباً 4 ارب سال پہلے سے زندگی کے آثار ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جیسے جیسے ہم جدید آج کل کا جو زمانہ ہے اس کے پاس آتے ہیں، فاسلز کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے، اور فاسلز کی موجودہ انواع کے ساتھ سملیرٹی بھی بڑھتی جاتی ہے. تو ہم انسانوں تک پہنچے تھے، اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں ان سب چیزوں کا علم کیسے ہے. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ریڈیومیٹرک ڈیٹنگ کیا ہوتی ہے، اور کلاسیفیکیشن مختلف انواع کی ہم کیسے کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے پھر نظریہ ارتقاء پر بات کی تھی کہ نظریہ ارتقاء ایکچولی ہے کیا، رائٹ. تو نظریہ ارتقاء بنیادی طور پر یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ یہ صرف انسانوں پر اپلائی ہوتا ہے. یہ تمام موجودہ انواع پر اپلائی ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی کسی بھی نوع کا کوئی فرد یا جوڑا بچے پیدا کرتا ہے تو بچوں میں تھوڑا سا جینیاتی تنوع ہوتا ہے، جینیاتی طور پر مختلف ہوتے ہیں اپنے والدین سے. تو اس سے آبادیوں میں وہ تنوع پیدا ہوتا ہے، اور پھر اگر ماحول کے ساتھ مطابقت زیادہ ہو تو وہ بچے اپنی نسل زیادہ پیدا کر پاتے ہیں. جن بچوں میں ماحول سے مطابقت کم ہو، کسی جینیاتی بیماری کا شکار ہوں یا مقابلہ نہ کر سکیں ماحول کا، تو وہ پھر جلد ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنی اگلی نسل پیدا نہیں کر پاتے. اس طرح سے انواع میں وقت کے ساتھ ساتھ ماحول سے مطابقت بڑھتی جاتی ہے. یہ بنیادی طور پر ارتقاء کا نظریہ ہے. ہم آج بات کریں گے، ہم نے جو کلاسیفیکیشن کی بات کی تھی، تو ہم آج بات کریں گے کہ اگر ہم انسانوں کی مثال لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو پورا ایک نظام ہے، ٹیکسونومی جسے کہتے ہیں، انواع کو مختلف کلاسز میں یا مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کا یا ان کو کلاسیفائی کرنے کا جو نظام ہے، اس میں کوئی بھی جانور کیسے فٹ ہوتا ہے. تو ہم مثال انسان کی لیں گے، لیکن آپ کوئی بھی موجودہ نوع اگر آپ اٹھائیں تو وہ اسی ٹیکسونومی کی یہ جو سسٹم ہے، کلاسیفیکیشن کا سسٹم ہے، اس میں پورے اترتے ہیں. تو انسانوں کی ہم بات کریں گے، لیکن ہم شروع کریں گے بالکل ٹاپ سے، یہ جو ڈومین ہے، رائٹ. تو کثیر خلوی اجسام تمام کے تمام یوکیریوٹ خلیوں سے بنتے ہیں، جو پیچیدہ خلیے ہوتے ہیں. ہم نے ذکر کیا تھا کہ پروکیریوٹ سادہ خلیے ہوتے ہیں، اور یوکیریوٹ قدرے پیچیدہ خلیے ہوتے ہیں. تو پروکیریوٹ یعنی سادہ خلیے وہ آج تک ملٹی سیلولر باڈی نہیں بنا پائے. وہ یہ جو آپ بیکٹیریا دیکھتے ہیں، جراثیم مختلف قسم کو جو دیکھتے ہیں، یہ یونی سیلولر ہوتے ہیں، یعنی یہ آزاد خلیے ہوتے ہیں. یہ ملٹی سیلولر باڈی نہیں بناتے. ملٹی سیلولر پیچیدہ اجسام صرف یوکیریوٹس بناتے ہیں. تو تمام ملٹی سیلولر اینیملز، تمام ایسے جاندار جو ایک سے زیادہ خلیوں پر مشتمل ہیں، وہ یوکیریوٹ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ڈومین کا نام ہے یوکیریا. اچھا، اب اس یوکیریا میں ایک سب سیٹ ہے، یعنی جو ملٹی سیلولر جانور ہیں ان میں ایک سب سیٹ ہے جو اپنی خوراک خود نہیں بناتے. انہیں ہم اینیملز کہتے ہیں، اور وہ کنگڈم اینیمیلیا میں شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پودے ہیں، پودے اپنی غذا خود بناتے ہیں، وہ فوٹوسنتھیسس کرتے ہیں، تو وہ اینیملز میں نہیں آتے.
इसी तरह फंजाई वो एनिमल्स में नहीं आते। तो ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, जिसका मतलब क्या है कि वो दूसरे जानदारों को खाते हैं, या दूसरे जानदारों की बाकियात को या दूसरे जानदारों को मार के खाते हैं, उन्हें हम एनिमल कहते हैं। अब इंसान को हम ये कहें या भेड़ बकरी को हम ये कहें कि वो तो किसी को मार के नहीं खाते, तो वो भी घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, जो अज खुद एक जिंदा चीज है, राइट। तो वो जिंदा चीजों को खाते हैं, तो इसलिए उन्हें हम एनिमल कहते हैं। अच्छा, अब एनिमल्स में एक सबसेट है जिसमें जिस्म का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसे बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर आप उसके जिस्म के दरमियान से लंबाई के रुख एक लाइन लगाएं तो उसके दाएं तरफ और बाएं तरफ के हिस्से एक जैसे होते हैं। जैसे इंसान एक बायलैटरली सिमेट्रिक नौ है कि इंसान को अगर आप सामने से देखें तो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल दरमियान में अगर आप लाइन लगाएं तो आपको दायां हिस्सा और बायां हिस्सा बिल्कुल एक सा नजर आएगा, राइट। हमारी दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। हमारा दायां बाजू, बायां बाजू, दाईं टांग, बाईं टांग, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। इसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो वो एनिमल्स जिनमें ये बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, इन्हें एक फाइलम अलग से करार दिया गया है जिसे हम कॉर्डेटा कहते हैं। तो तमाम के तमाम वो जानवर जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं वो तमाम कॉर्डेट्स हैं, उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, राइट। अब कॉर्डेट्स में एक सबसेट है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। तमाम कॉर्डेट्स में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसमें और भी जानवर शामिल होते हैं, लेकिन कॉर्डेट्स का एक जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं। इन्हें हम वर्टेब्रेट्स कहते हैं, राइट। उर्दू में इसे फकारी जानवर कहते हैं, अंग्रेजी में इसे वर्टेब्रेट्स कहते हैं। और वर्टेब्रेट्स में अब मछलियां हैं, समुद्री जानवर हैं, कुछ जानवर अगर आप ये देखें जो मिसाल के तौर पर केकड़े हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो वो वर्टेब्रेट्स नहीं है। या आप अगर एक कटल फिश होती है, इस किस्म के जो समुद्री जानवर हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो उन्हें हम वर्टेब्रेट्स नहीं कहते, राइट। जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें सिर्फ वर्टेब्रेट्स कहा जाता है या फकारी जानवर कहा जाता है। अच्छा, अब वर्टेब्रेट्स जो हैं वो समुद्र में भी होते हैं, जैसे मछलियां हैं उनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और खुश्की पे भी है। खुश्की पर जो चल सकते हैं जानवर जिनके हाथ और पांव होते हैं या चार टांगे समझ लीजिए, उन्हें हम टेट्रापॉड्स कहते हैं। टेट्रा का मतलब चार, पॉड्स का मतलब आजा, राइट। चार आजा वाले जानवर टेट्रापॉड्स। तो आप ये देख लीजिए कि जमीन पर अगर आप हशरात को छोड़ दें तो रीढ़ की हड्डी वाले जितने भी जानवर हैं उनके आमतौर पर आपको चार लिम्स यानी आजा नजर आएंगे, राइट। दो हाथ, दो पांव होंगे या चार टांगे होंगी, तो ये सब टेट्रापॉड्स हैं। तो इंसान भी एक टेट्रापॉड के ही उसमें जुमरे में आता है। अच्छा, अब हमने कॉर्डेट्स का जिक्र किया था, फाइलम कॉर्डेट्स है, उसी में टेट्रापॉड्स आते हैं। लेकिन टेट्रापॉड्स में भी एक सबसेट ऐसा है जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी उनकी मादाएं जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिनमें दूध बनता है। इनके खास तौर पे कान बहुत यूनिक होते हैं कि इनके कानों में 3 हड्डियां होती हैं। अगर आप कान का स्ट्रक्चर देखें, बिल्ली का या कुत्ते का या शेर का या इंसान का या किसी ग्रेट एप का, चिंपैंजी, गोरिल्ला वगैरह का, उनके कानों में 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो आवाज को एम्पलीफाई करती हैं, और फिर उससे कान का जो पर्दा है वो हिलता है, जिससे फिर वो कानों में वो जो सेंसर हैं वो डिटेक्ट करते हैं और दिमाग तक आवाज की इंफॉर्मेशन पहुंचती है, राइट। तो तमाम मैमल्स में सुनने का जो अमल है, कानों का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, ये बाहर से नजर नहीं आती, अंदरूनी स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल एक सा होता है। और उसके अलावा तमाम मैमल्स में 3 किस्म के दांत होते हैं। जैसे अगर हम इंसानों को देखें कि सामने के दांत हैं जो जरा चपटे होते हैं, उसके बाद 4 नुकीले दांत होते हैं, उसके बाद पीछे जिन्हें हम दाढ़े कहते हैं, राइट। ये 3 किस्म के दांत हर मैमल में होते हैं, और इन जानवरों को मैमल्स कहते हैं जिनमें साफ खुसूसियात हों, यानी उनमें मेमोरी ग्लैंड्स हो। और मेमोरी ग्लैंड्स आपको पता है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स के निशानात हैं वो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं।
यानी अगर आप किसी कुत्ते या बिल्ली या शेर को देखें तो उनमें भी ऐसा ही होता है कि मादाएं जब बच्चे जनती हैं तो उनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम थन कहते हैं, जिनसे दूध निकलता है, लेकिन मेल में भी वो निपल्स मौजूद होते हैं जो फीमेल में होते हैं। तो ये तमाम मैमल्स की निशानी, ये सिर्फ इंसानों में नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों में निपल है, तमाम मैमल्स में ऐसे ही होते हैं। तो बहरहाल इस क्लास को हम क्लास मैमेलिया कहते हैं, राइट। अब मैमल्स में एक सबसेट जानवरों का ऐसा है जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। ज्यादातर जानवरों की, मैमल्स की आंखें आप अगर आप देखें तो कदरे साइड की तरफ होती हैं, लेकिन एक सबसेट है जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं और उनके हाथ या पांव होते हैं, हाथ और पांव होते हैं, और हाथों में और पांव में भी अपोजिबल थंब होता है, जिसका मतलब यह है कि वो अंगूठा अलग से होता है और वो अंगूठा और उंगली को मिला सकते हैं, इसे अपोजिबल थंब कहते हैं। बहुत से मैमल्स में ऐसा नहीं, जैसे कुत्ता बिल्ली है, शेर है, उनके पंजे होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन ऐसे मैमल्स जिनमें अपोजिबल थंब होता है, उसके अलावा उनके नाखून होते हैं, उनके पंजे नहीं होते, क्लॉज नहीं होते, उनके नेल्स होते हैं, राइट। और उनके शोल्डर्स पूरा घुमा सकते हैं अपने बाजू को, जैसे इंसान अपने बाजू को घुमा सकता है, इसे रोटेटेबल शोल्डर कहते हैं। तो जिन मैमल्स में ये खुसूसियात हों, वो एक सबसेट है मैमल का, उन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। अब प्राइमेट्स में बहुत से बंदर, जैसे हम आम जमाने में बंदर कहा जाता है, लेकिन बंदर का लफ्ज जो है बहुत मुबहम है और मैं आमतौर पे अवॉइड करता हूँ इस लफ्ज को इस्तेमाल करना, क्योंकि इससे बहुत सी कंफ्यूजन फैलता है। अंग्रेजी में इनके अलग अलग नाम हैं, बंदरों की जो मुख्तलिफ अनवा है, राइट। तो ये तमाम प्राइमेट्स हैं। अब प्राइमेट्स में भी एक सबसेट ऐसा है जो 2 पांव पर चलता है या चलता था, और इस सबसेट को होमिनिड्स कहते हैं। तो इंसान का ताल्लुक होमिनिड्स से है, राइट। अब होमिनिड्स में बहुत से ऐसे हमें फॉसिल्स मिल चुके हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इनकी बहुत सी अनवा थी, लेकिन अब वो सब की सब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन ये वो हैं प्राइमेट्स जो 2 पांव पर चलने के काबिल थे। ज्यादातर प्राइमेट्स जो हैं, जैसे अब आजकल जो देखें ना, लंगूर है या मकैक मंकी है या चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, ये ज्यादातर ये 2 पांव पे चल सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं चलते। ये ज्यादातर 4 पांव पे चलते हैं, हाथ और पांव को मिला के चलते हैं। होमिनिड उनको कहते हैं जो 2 पांव पर चल सकते हैं। तो इंसान का ताल्लुक होमिनिड से है। अब होमिनिड में भी एक सबसेट है जो टेक्नोलॉजी बनाने के, यानी टूल बनाने के काबिल था। इन्हें हम जीनस कहते हैं, जीनस होमो। और तमाम होमिनिड्स, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, वो भी एक होमिनिड था, लेकिन वो गालिबन टूल्स बनाने के काबिल नहीं था। वो आग जला लेता था, वो लकड़ियों से नेज़े बना के शिकार कर लेता था, लेकिन वो बनी बनाई जो लकड़ी दरख्त की तोड़ के उसको नेज़े के तौर पर इस्तेमाल करना। लेकिन वो होमिनिड्स जो बाकायदा लकड़ी को तराश के या पत्थर को तराश के हथियार बना सकते थे, उन्हें हम जीनस होमो में डालते हैं। और जीनस होमो में एक तो इंसान है, होमो सेपियन है, ये एक स्पीशीज है। उसके अलावा निएंडरथॉल्स जो अब मादूम हो चुके हैं, लेकिन अब हमें पता है कि वो भी शिकार करते थे। इसी तरह डेनिसोवंस हैं जिनके भी बाकियात मिल चुके हैं, उनका डीएनए भी मिल चुका है और हमें पता है कि वो भी शिकार करते थे। तो ये तमाम के तमाम ये जीनस होमो में आते हैं। लेकिन होमो सेपियन जो इंसान, मौजूदा इंसान है, ये एक स्पीशीज है और जीनस होमो की ये वाहिद स्पीशीज है जो अभी जिंदा है। बाकी तमाम स्पीशीज मादूम हो चुकी हैं। तो ये मैं सिर्फ समझाना चाह रहा था कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है। ऐसे ही अगर आप किसी भी जानवर को उठा लें, चिड़िया को उठा लें, तो उसको भी आप इसी तरह टेक्सोनॉमी में आपको वो फिर कोडेटा तक वो कॉमन मिलेंगे, उसके बाद फिर वो अलग हो जाएंगे, इसलिए कि वो रेप्टाइल्स में आते हैं। अगर आप बिल्ली या कुत्ता उठा लें तो वो फिर मैमल्स में आएंगे, लेकिन फिर वो प्राइमेट नहीं होंगे, वो किसी और ऑर्डर में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम जानवरों की क्लासिफिकेशन करते हैं और ये तमाम के तमाम जो मौजूदा अनवा हैं वो इसी टेक्सोनॉमी में आते हैं। अच्छा, तो ये तो बात होगी कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन थी। अब हम आते हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले तो मैं ये आप पे वाज़ा करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात हम इवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। ये पिछली दफ़ा भी बात हुई थी इस पे
کہ ایوولوشن جو ہے وہ ایک ऑब्जर्व फैक्ट है, जो हमने बात की थी कि 4 अरब साल पहले के मोलिकुलर ट्रेसेस मिलते हैं जिंदगी के, तकरीबन 3 अरब साल पहले के हमें सिंगल सेलुलर या जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनके जो एग्रीगेट्स हैं उनकी बाकियात मिलती हैं, और फिर तकरीबन 1 अरब साल पहले हमें मल्टी सेलुलर जानवरों की इब्तदाई निशानात मिलते हैं, ट्रेसेस मिलते हैं, राइट. और फिर कोई 70 करोड़ साल पहले हमें 65 करोड़ साल पहले हमें वो हार्ड बॉडीज के फॉसिल मिलना शुरू होते हैं, राइट. ये तमाम की तमाम जो हैं ये हकायक हैं जो हमें इल्म है. तो ये इससे इवोल्यूशन हमें नजर आती है सामने, राइट. लेकिन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है? वो एक साइंसी वजाहत है, यानी साइंसी नजरिया है जो इन तमाम फैक्ट्स की वजाहत करती है. और ये जो हजारों लाखों करोड़ों फैक्ट्स हैं, हर फॉसिल जो निकलता है, हर जो हम फॉसिल को डेट करते हैं, ये एक डाटा पॉइंट है, राइट. तो ये डाटा पॉइंट मिलके हकायक बनते हैं. ये हकायक सिर्फ डाटा को कहते हैं, डाटा की कलेक्शन को हकायक कहते हैं. तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन हकायक की वजाहत करती है. और ये कोई ऐसा नहीं है कि डार्विन ने अचानक उठ के कह दिया कि जानवर इवॉल्व हुए हैं. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की भी तारीख बहुत पुरानी है. तो अगर आप देखें तो ग्रीक फिलोसफर्स ने 6वीं सदी कबल मसीह में, यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसी में, ये प्रपोज किया था कि इंसान मछली नुमा जानवरों से इर्तिका पजीर हुए हैं. उस वक्त ये फलसफा था, और ये वाहिद फलसफा नहीं था, बहुत से दूसरे फलसफे मौजूद थे. कुछ फिलोसफर ये कहते थे कि इंसान मौजूदा शक्ल में या तमाम जानवर मौजूदा शक्ल में ही तश्कील पाए हैं. कुछ कहते थे कि शक्लें बाकी जानवरों की बदलती रहती, इंसानों की नहीं बदलती. लेकिन कुछ फिलोसफर ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि तमाम जानवर इर्तिका पजीर हुए हैं और इंसान भी इर्तिका पजीर हुआ है, राइट. एरिस्टोटल, जिसे एक तरह से हम इंसानी तारीख का पहला साइंसदान कह सकते हैं कि उसने मुशाहिदात की बिना पर हकायक को जानने की बुनियाद डाली. उससे पहले सिर्फ फलसफे की बुनियाद पर, यानी सोचने से, यानी कॉग्निशन से या अपनी विजडम से ये समझा जाता था कि अपनी विजडम से हम हकायक मालूम कर सकते हैं, राइट. एरिस्टोटल ने बाकायदा मुशाहिदात की एक रवायत शुरू की, और उसने बहुत से जानवरों का मुशाहिदा किया. वो चूंकि साहिली इलाके में, ग्रीस का अगर हम नक्शा देखें तो वो समुद्र के पास है, सारे यूरोपीय इलाके जो है समुद्र के पास हैं. तो वो माहीगीरों के पास जाता था. माहीगीर जो मछलियां पकड़ के लाते थे, केकड़े पकड़ के लाते थे, ऑक्टोपस पकड़ के लाते थे, राइट, स्पॉन्जेस पकड़ के लाते थे. वो उनका मुशाहिदा करता था और माहीगीरों से इंटरव्यू करता था बाकायदा कि उसको ये जानवर कहाँ से मिला जो समुद्र के नीचे जाके स्पॉन्जेस लाते थे. स्पॉन्जेस जो है वो समुद्र की तह में होते हैं, राइट. तो 20, 25, 30 फुट गहरा समुद्र है, वहां पे वो डाइव करके वो जाके लाते थे. तो उनसे वो पूछते थे एरिस्टोटल कि ये कैसे जिंदा रहते हैं, क्या खाते हैं ये. तो इस तरह से उन्होंने, एरिस्टोटल ने बहुत से जानवरों का मुशाहिदा किया और ये पैटर्न देखा कि जानवरों का स्ट्रक्चर रिलेटिवली एक सा है. यानी हाथ पाँव को देखें, इंसानों के, जानवरों के जो 4 लिम्स हैं वो देखें, या मछलियों की रीढ़ की हड्डी देखें. तो ये उसने, अरस्तु ने उस वक्त ये कहा था कि तमाम जानवर एक सिलसिले में मुंसलिक हैं और एक दूसरे से इर्तिका पजीर हुए हैं. उसका नाम उसने दिया था ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स. ये अगर आप लिटरेचर पढ़ें ग्रीक तो उसमें आपको ये तरकीब अक्सर नजर आएगी, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स, राइट. उसके बाद ये सिलसिला मुशाहिदात का चलता रहा, लेकिन फिर एक है यूरोप में डार्क एजेस आ गई और इल्म की शमा थी वो मुसलमानों के पास आ गई. तो मुसलमानों में बहुत से फलसफादान हैं, बहुत से साइंसदान हैं जिन्होंने इवोल्यूशन पे काम किया. उनमें खास तौर पे एक नाम जो है वो बहुत आम है, जिसको आप यूरोपियन और अमेरिकन साइंटिस्ट भी तस्लीम करते हैं. उसका नाम है अल-जाहिज. ये एक मुस्लिम स्कॉलर थे. ये बनु उमैया के ज़माने में थे, बसरा में और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में. ये भी यही करते थे कि उस ज़माने में आपको पता है कि खलीफा जो थे ख़ास तौर पे बनु अब्बास के ज़माने में थे, बनु उमैया के ज़माने में, बनु अब्बास के जो खलीफा थे वो इल्म दोस्त थे. और ख़ास तौर पे हारून रशीद, मामून रशीद, इन्होंने तो बाकायदा बैतुल हिकमा के नाम से एक महकमा काम किया था जहाँ दुनिया भर से किताबें ला के ट्रांसलेट की जाती थी. और उसी बैतुल हिकमा में अल-जाहिज को भी
जगह दी गई थी। और इनका काम क्या था, उस ज़माने में खलीफा को जानवरों का बहुत शौक था, तो पूरी दुनिया से जानवर लाके बाकायदा अजायब घर बनाए गए थे खलीफा के लिए। तो अलजाहिज को इजाज़त थी उन जानवरों का मुशाहदा करने की, तो उन्होंने बहुत से जानवरों का मुशाहदा किया। जराफ पहली दफ़ा उन्होंने देखा। मछलियाँ जो साहिल से आती थी, क्योंकि सब इलाके ये भी साहिली इलाके हैं, तो माहीगीरों से उन्होंने बहुत सी मछलियाँ, उसके अलावा भारत से जानवर आते थे, अफ्रीका से जानवर आते थे, उन सब का मुशाहदा किया। और उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़ख़ीम किताब लिखी जो 8-10 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल थी। उसका नाम था किताबुल हीवान। ये वो किताब है जो उस ज़माने में यूरोप में भी पढ़ाई जाती थी यूनिवर्सिटियों में। और उस किताब में उन्होंने ये प्रपोज किया कि ये जानवर इर्तिका पजीर हुए हैं। उस ज़माने में फॉसिल ढूंढने का तो रवाज नहीं था, लेकिन फॉसिल पाए जाते थे, ज़मीन की सतह पर फॉसिल मिल जाते थे। ये जो मुख्तलिफ इलाकों में, पहले लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि मुख्तलिफ इलाकों में ये जो बड़े बड़े जो देवी देवता हैं उनका जिक्र आता है, या जो ड्रैगन्स आते हैं मुख्तलिफ कल्चर्स में, वो असल में उस ज़माने में भी फॉसिल्स मिलते थे। बड़े बड़े डायनासोर्स की या दूसरे जानवर हैं उनके बाकियात मिलती थी, उनकी हड्डियां मिलती थी। तो वो हड्डियां भी मुस्लिम स्कॉलर ने स्टडी की और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जानवर भी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, और बका की जंग में कुछ जानवर जो है मादूम हो जाते हैं, कुछ तब्दील हो जाते हैं। तो ये जो नज़रिया है अलजाहिज का, डार्विन से लगभग 800-900 साल पहले, ये डार्विन के नजरिए के पास है, लेकिन बिल्कुल डार्विन के नजरिए जैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये तो बता दिया कि जानवर इर्तिका पजीर होते हैं, पुराने जानवर मादूम हो जाते हैं, उनकी तब्दील शुदा फॉर्म जो है वो फिर आगे मजीद तब्दीली उनमें आती है, लेकिन उन्होंने कोई नेचुरल मैकेनिज्म इसका तजवीज़ नहीं किया था। तो ये कहना कि अलजाहिज ने डार्विन वाली थ्योरी दे दी थी, ये भी गलत बात है। लेकिन ये दुरुस्त है कि डार्विन से बहुत पहले अलजाहिज ने ये बता दिया था कि जानवर वक्त के साथ तब्दील होते हैं और उन पे एक सिलेक्शन प्रेशर होता है, राइट। उसके बाद यूरोप में अगर आप देखें तो लियोनार्डो डा विंची, जिन्होंने वो एक बहुत सी फेमस जैसे वो है मोनालिसा, वो उन्होंने पेंट की थी, जो दुनिया की मशहूर तरीन पेंटिंग समझी जाती है। वो एक नेचुरलिस्ट भी थी। उस जमाने में साइंसदान तो नहीं होते थे, इन्हें नेचुरलिस्ट कहा जाता था, जो फितरी चीजों में दिलचस्पी लेते थे। तो उनके पास अलजाहिज की किताब का ट्रांसलेशन मौजूद था और उन्होंने खुद मुशाहिदात किए। अलजाहिज की जो मुशाहिदात थे उनसे उन्होंने इस्तिफादा किया और उन्होंने भी जानवरों में जो तारीखी तौर पर इर्तिका के जो वो हैं स्टेजेस, वो डॉक्यूमेंट की। उसके बाद अगर आप 17वीं सदी में आ जाएं, 18वीं सदी के शुरू में, तो लमार्क बहुत मशहूर नेचुरलिस्ट हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा ये कहा था कि जानवरों पर बाकायदा एक सिलेक्शन प्रेशर होता है और वो वक्त के साथ साथ इस सिलेक्शन प्रेशर की वजह से तब्दील होते जाते हैं। लेकिन उसकी वजह उन्होंने सही तशखीस नहीं की थी। उनका ख्याल ये था कि जैसे ज़राफ़ा की मिसाल है, बहुत मशहूर मिसाल है, हालांकि उन्होंने और भी मिसालें दी थी। ज़राफ़ा की मिसाल जो है वो पब्लिक कॉन्शियसनेस में वो मुनक्किश हो गई है, तो मैं उसी की बात करता हूँ कि ज़राफ़ा चूँकि बड़ा जानवर है, उसको पौधों से पत्ते खाने की ज़रूरत ज़्यादा थी, तो उनमें जो ज़रा जिनकी गर्दन लंबी थी वो ज़्यादा ऊंचे दरख्तों तक भी पहुंच सकते थे, इसलिए वो अपनी नस्ल ज़्यादा पैदा करते थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये लंबी गर्दन उस वजह से होती थी कि वो स्ट्रेच करना पड़ता था अपनी गर्दन को, यानी उनको गर्दन को खींच के लंबा करना पड़ता था और फिर वो काबिलियत उनके अगली नस्ल में मुंतकिल होती जाती थी। इस तरह उनकी नस्ल बढ़ गई, राइट। तो डार्विन पहले नेचुरलिस्ट थे। अभी आपको शायद इल्म होगा कि डार्विन बायोलॉजिस्ट नहीं थे, बायोलॉजी का तो उस वक्त तस्वुर भी नहीं था, राइट। बायोलॉजी साइंस नहीं थी, नेचुरलिज्म कहते थे इसको, जानवरों की मुशाहदात को। लेकिन डार्विन की अपनी दिलचस्पी ज्यादातर जियोलॉजी में थी। वो बुनियादी तौर पर जियोलॉजिस्ट थे और वो निकले थे जियोलॉजी को स्टडी करने। लेकिन वहां पे उन्होंने देखा कि जहां जैसे जैसे जियोलॉजी तब्दील होती है वैसे वैसे वहां की जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी तब्दील होती हैं। तो एक मशहूर इनका बहरी सफ़र है, एक बहरी जहाज था बीगल, उस पे इन्होंने सफ़र किया था जो 5-6 साल का सफ़र था और वो पूरे
तकरीबन आधी दुनिया उन्होंने देख ली थी इसी सफ़र में, और मुख्तलिफ इलाकों से वो जानवरों के सैंपल्स इकट्ठा करके वो फिर अपने उधर इंग्लैंड भेजते थे। और फिर जब वापस आए तो उन्होंने फिर मुशाहिदा किया। तो जब वो सफ़र में थे उस वक्त तो उन्होंने इतना तफसीली मुशाहिदा नहीं किया था। वापस जाके फिर उन्होंने अपने सैंपल जो देखे, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये तो बाकायदा एक मुख्तलिफ इलाकों में जो जानवर तब्दील हो रहे हैं वो उनके माहौल की वजह से तब्दील हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर ये तजवीज़ सबसे पहले पेश की थी कि अगली नस्लें जो पैदा होती हैं उनमें कुछ तनव्वुह होता है, और उसमें फिर ये होता है कि एक जो कंपटीशन है कि हर नस्ल बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, इतने ज़्यादा बच्चे सर्वाइव नहीं करते, और माहौल में इतने वसाइल नहीं होते, यानी इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो बहुत से यानी तमाम बच्चों को सपोर्ट कर सकें, इसलिए कुछ बच्चे मर जाते हैं, कुछ कामयाब रहते हैं। तो ये जो फ़र्क है माहौल से ज़्यादा मुताबिकत और कम मुताबिकत का, ये वो ड्राइवर है जिसे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया था। और ये उनकी थ्योरी थी जो जिसे हम डार्विन की थ्योरी कहते हैं। तो डार्विन ने एवोल्यूशन का प्रपोज नहीं किया था, एवोल्यूशन का हमें पहले से इल्म था। डार्विन ने एक फितरी मैकेनिज्म का प्रपोज किया था जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अब उस ज़माने में चूंकि ना हमारे पास केमिस्ट्री थी, ना फिजिक्स थी, ना बायोकेमिस्ट्री थी, ना हमें जीनियात का इल्म था, इसलिए डार्विन को ये मैकेनिज्म का इल्म नहीं था कि तनव्वुह क्यों होता है और उनमें फिर यह है कि उनसे तब्दीलियां कैसे आती हैं। लेकिन उनका जो बुनियादी तस्वुर है कि स्पीशीज वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं और जिनमें मुताबिकत माहौल से ज़्यादा होती है वो सर्वाइव करते हैं, ये आज भी अब हमें इल्म है कि ये तस्वुर दुरुस्त था। तो उनके कुछ बयान गलत थे जो अब हम इस थ्योरी से निकाल चुके हैं, कुछ बयान जो दुरुस्त है, जैसे ये है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन जिसे कहते हैं, वो आज भी है इस थ्योरी का हिस्सा। तो आज जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है इसे डार्विन की थ्योरी कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि डार्विन के ज़माने में जिन चीज़ों का इल्म नहीं था अब हमें उन चीज़ों का भी इल्म है, जैसे जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजिक्स है, अब हमें क्वांटम फिजिक्स का पता है, अब हमें पता है कि म्यूटेशन होती क्यों है। और तो उस तमाम जो हमने 19वीं और 20वीं सदी में और अब 21वीं सदी में जो हमने साइंस सीखी है, तो 20वीं सदी तक की जो साइंस थी उसकी बुनियाद पे जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसे मॉडर्न सिंथेसिस कहा जाता है। और मॉडर्न सिंथेसिस में भी अब मजीद तब्दीलियां हो रही हैं, जैसे जैसे हमें मजीद शवाहद मिलते हैं, हमें मजीद इल्म मिलता है, तो अब हमें इवोल्यूशन के और बहुत से मैकेनिज्म्स मालूम हैं जो डार्विन को मालूम नहीं थे, और जो 20वीं सदी के वस्त में भी जब ये न्यू सिंथेसिस की तश्कील दी गई थी उस वक्त भी उसका इल्म नहीं था। तो अब हम आते हैं इवोल्यूशन के शवाहद क्या है। तो आज तो हम इस लेक्चर को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम किसी भी कन्वीनियंट जगह पे हम इस लेक्चर को रोक देंगे और फिर सवाल जवाब का हम थोड़ा सा करेंगे, और ये लेक्चर फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम जारी रखेंगे, क्योंकि शवाहद की लिस्ट बहुत लंबी है। आम तौर पे लोगों के जहन में ये होता है कि फॉसिल्स वाहिद वो चीज़ हैं जिनकी बुनियाद पे इर्तिका का नजरिया तश्कील दिया गया है। फॉसिल्स और जो जानवरों के जिस्मानी स्ट्रक्चर हैं, राइट, उनकी बेस पे डार्विन ने ये नजरिया तजवीज़ दिया था। लेकिन अब फॉसिल्स और जिस्मानी जो स्ट्रक्चर है उसके अलावा और बहुत से तरीके हैं जिनसे हम इर्तिका के शवाहिद हासिल कर चुके हैं। तो हम पहले उन शवाहिद की बात करेंगे जो हम आम लोगों को पब्लिक कॉन्शियसनेस में ज़्यादा हैं, यानी फॉसिल्स और जो जिस्मानी स्ट्रक्चर्स की मुशाबियत है। तो फॉसिल्स का तो हमें ये पता है कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि प्री कैम्ब्रियन फॉसिल्स भी अब मिलती हैं। अब फॉसिल से मुराद जरूरी नहीं कि वो हड्डियां मिलें, उस जमाने में हड्डियां तो थी नहीं। कैम्ब्रियन धमाके से पहले हमें सॉफ्ट बॉडी जानवरों के शवाहद मिलते हैं जो उनके जिस्मानी निशान हैं जो चट्टानों पर मुनक्कश हो चुके हैं। या फिर उससे भी पहले जाएं तो हमें माइक्रोबियल ट्रेसेस मिलती हैं, यानी हमें उन मॉलिक्यूल्स के आसार मिलते हैं जो अब हम जानते हैं कि सिर्फ जिंदगी ही पैदा करती है।
कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हमें पता है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे अगर हम मीथेन की बात करें, राइट, या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो जानवरों में मीथेन बनती है, जानवरों में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन हमें पता है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल प्रोसेस से, नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी बनती है। लेकिन बहुत सी केमिकल्स ऐसे हैं, पेचीदा केमिकल्स, जो कम से कम अब तक जो हमारा इल्म है उसके मुताबिक वो सिर्फ जिंदा अजसाम में ही बनते हैं, यानी वो जो पेचीदा केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, उसी से बन सकते हैं। वो केमिकल्स हमें 3.8 बिलियन यानी 3.8 अरब साल पुरानी चट्टानों में मिलते हैं। उसके अलावा मैंने जैसे पहले जिक्र किया था, एलजी सिंगल सेलुलर भी है, ये मल्टी सेलुलर भी बनाते हैं, ये बहुत से इकट्ठे होकर कॉलोनीज बनाते हैं, और उन कॉलोनीज की बाकियात 1 अरब साल पहले के चट्टानों में हमें मिलती हैं। फिर जो सॉफ्ट बॉडीज इंप्रेशंस हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो दिखाया जा रहा है ये एक इंप्रेशन है। इस किस्म के इंप्रेशन हमें 80 करोड़ साल पुरानी चट्टानों में मिलते हैं, और उनसे हमें ये इल्म हासिल होता है कि उस जमाने में पेचीदा अजसाम बनने शुरू हो गए थे। अब ये हमें इल्म नहीं है कि वो हरकत कर पाते थे या अपनी जगह पर रहते हुए ही अपनी खुराक तलाश करते थे। ये सब कुछ समुद्र के नीचे हो रहा है, अभी खुश्की पर कुछ नहीं है, राइट। ये सब कुछ समुद्र की तह में हो रहा है। तकरीबन 63 करोड़ साल पहले हमें पौधों जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे ये जो है ये पौधे जैसा ऑर्गेनिज्म है, इस किस्म के हमें इंप्रेशंस मिलना शुरू होते हैं। इससे पहले हमें सिर्फ एक लंबूतरी, जो इस किस्म की लंबूतरी शक्ल है, उसके आसार उससे भी पहले मिलते थे। और ये सारे प्री कैम्ब्रियन है ना, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जो तकरीबन 54-55 करोड़ साल पहले हुआ था, ये उससे पहले की चट्टानें हैं जिनमें हमें मिलते हैं। तो हमें बहुत से मुख्तलिफ बॉडी पैटर्न्स मिलते हैं जो बाद में उनमें से कई मादूम हो गए। लेकिन अगर आप इस इंप्रेशन को देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं बायलैटरल सिमेट्री है यहाँ पे, राइट। उसका दाएं हिस्सा और बाएं हिस्सा लगभग एक जैसा है। तो बायलैटरल सिमेट्री का इर्तिका कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले हो चुका था। अब हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन पे जब आते हैं तकरीबन 54-55 करोड़ साल पहले, तो हमें फिर ज्यादा तेजी से ये तब्दील होते नजर आते हैं। अब तेजी जो है ये भी एक रिलेटिव टर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर 100 साल बाद जानवर तब्दील हो रहे थे। ये तब्दीली भी मिलियंस ऑफ ईयर्स पे है, लेकिन 10, 12, 15 मिलियन साल के एक अरसे में हमें बहुत से नए बॉडी प्लान्स मिलते हैं, हमें हार्ड बॉडीज मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो हड्डियां हैं या एक्सोस्केलेटन हैं, यानी जो कीड़े मकोड़े हैं जिनके अंदर मसल्स होते हैं और बाहर हार्ड स्ट्रक्चर होता है, वो और दांत हमें कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में दांत मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी उस जमाने में जानवरों में दांत बनने शुरू हो चुके थे। तो ये सब के सब अभी तक पानी में चल रहा है, अभी तक खुश्की पे कोई जानवर नहीं आया। वर्टेब्रेट सबसे पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान नजर आते हैं, और हमें जानवरों के जो एनाटॉमी है उसमें ज्यादा पेचीदगी, जैसे अभी ये देखें नीचे वाला जो है शबी, ये भी कैम्ब्रियन दौर की है, लेकिन इसमें अब आपको ज्यादा पेचीदा बॉडी पार्ट्स नजर आ रहे हैं। बायलैटरल सिमेट्री भी है, लेकिन उसके अलावा ज्यादा पेचीदगी नजर आ रही है। इस वक्त जानवरों में जितने बॉडी प्लान्स हैं, खा वो वर्टेब्रेट्स हों, चाहे वो नॉन वर्टेब्रेट्स हों, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो हशरात हों, चाहे वो पौधे हों, वो तमाम के तमाम बॉडी प्लान्स जो हमें आज नजर आते हैं वो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में हमें नजर आने लगते हैं। और हमें ये नजर आने लगता है कि उस जमाने में प्रेडेशन शुरू हो चुकी थी। यानी उससे पहले जो इस जमाने की बात है जब ये जो इंप्रेशन बना था, उस जमाने में शायद जानवर सिर्फ फिल्टर फीडिंग करते थे, यानी जो मॉलिक्यूल्स पानी में मौजूद हैं उनको जज्ब करके वो न्यूट्रिएंट्स लेते थे। लेकिन कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का जो आखिरी हिस्सा है उसमें हमें ये नजर आने लगता है कि प्रेडेशन शुरू हो गई थी, यानी जानवरों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था, और उसके नतीजे में बहुत से नए प्रेशर्स, सिलेक्शन प्रेशर्स पैदा हुए, जिसके नतीजे में रैपिड मोबिलिटी यानी तेजी से हरकत करने की, यानी तैरने की काबिलियत पैदा हुई। और कुछ जानवरों में
बॉडी पार्ट सख्त हो गए, जैसे जैसे आप समझ लीजिए कि ढाल के तौर पर अपने बॉडी पार्ट्स बना लिए ताकि अगर कोई जानवर उनको निगलना चाहे तो वो काट ना सके इन्हें, राइट। कुछ जानवरों में आपको जबड़े नजर आने लगे, जबड़े में दांत नजर आने लगे ताकि वो दूसरे बड़े जानवर का जिस्म नोच के खा सकें। तो ये सब हमें कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में मिलता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो हमें स्पीशीज मिलते हैं वो ट्राइलोबाइट्स के मिलते हैं। ये जो इंप्रेशन है या ये जो फॉसिल है ये एक्चुअली ट्राइलोबाइट का ही है। उसके बाद हमें और अब कैम्ब्रियन से मौजूदा दौर की तरफ आए तो वो जो हिस्ट्री मैंने पिछले लेक्चर में बयान की थी वो हमें बतदरीज हमें नजर आती है कि पहले हमें समुद्री जानवर जो है उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नजर आती है, बहुत बड़े जानवर बनने लगते हैं। खास तौर पे जो रीढ़ की हड्डी वाले यानी जो वर्टेब्रेट्स हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां नजर आने लगती हैं। मछलियां सबसे पहले नजर आती हैं जिनमें जाहिर है कि रीढ़ की हड्डी है और वो बॉडी स्ट्रक्चर है जो आज तक मौजूद है, 4 लिम्स वाला। और शुरू की जो मछलियां हैं वो जॉलेस हैं, यानी उनमें जबड़े नहीं हैं, वो सकर्स हैं, यानी वो दूसरे जानवरों को अगर पकड़ भी लें तो उनकी जिल्द से सक करके यानी चूस के उनके बॉडी फ्लूइड्स खाती थी। लेकिन बाद में फिर हमें वो मछलियां मिलने लगती जिनके बाकायदा जबड़े थे और जबड़ों में दांत थे, यानी वो फिर दूसरों को नोच के खाने लगी थी। उसके अलावा ये वो जमाना है जब पहली दफा जमीन पर हमें पौधों के फॉसिल यानी जो खुश्की है उस पर हमें पौधों के फॉसिल नजर आने लगते हैं। मछलियों में हमें ऐसी मछलियां नजर आने लगती हैं जिनमें बड़ी हड्डियां थी, इनको लोब्ड फिन्ड फिश कहते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अब ये मछलियां अब गहरे पानी में नहीं थी, ये उथले पानी में या नदी नालों में दरियाओं में इर्तिका पजीर हो रही थी, जहां पे समुंदर में ये होता है कि पानी, आपको पता है कि पानी में बॉयंसी होती है, इसलिए मछलियां अपना बहुत ज्यादा वजन बर्दाश्त कर, या दूसरे लफ्जों में कहे कि उनका वजन बहुत कम होता है, यानी वो बायोंट होती है, यानी वो आम यानी तकरीबन तकरीबन वेटलेस होती हैं पानी में। इस वजह से अगर आप देखें समुद्री मछलियां या दरिया में जो गहरे दरिया में मछलियां रहती हैं उनके कांटे बहुत बारीक होते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उन पे वजन नहीं होता, उनको वजन सहारने के लिए बड़ी हड्डियां नहीं चाहिए होती, इसलिए उनके कांटे बहुत बारीक होते हैं। लेकिन जो मछलियां दरियाओं में या उथले पानियों में होती हैं या नदी नालों में होती हैं या समुद्र के बिल्कुल किनारे पे साहिली इलाकों में होती हैं, उनके जिस्मी हड्डियां ज्यादा बड़ी और मजबूत होती हैं, मोटी होती हैं, उन्हें लोब्ड फिन फिश कहते हैं। और उन्हीं में हम देखते हैं कि उनमें वो स्ट्रक्चर अब नजर आने लगे हैं जैसे शोल्डर जॉइंट है, यानी जो कंधे का जोड़ है वो नजर आने लगता है, जिसका मतलब ये है कि ये मछलियां अब पानी की तह में अपने पांव जमाकर अपने आप को ऊपर उठाने के काबिल हो गई हैं। यानी अगर 4-5 इंच 6 इंच पानी है तो वो पानी में रहते हुए अपने कंधों को पे जोर लगा के अपने सर को उठा के पानी से बाहर निकालने के काबिल हो गई। ये है शोल्डर जॉइंट का जो पहला इर्तिका हुआ, ये इस तरह से हुआ। फिर हमें नजर आता है उसके बाद ऐसे जानवर नजर आने लगते हैं जैसे टिक्टोलिक का पहले जिक्र किया था, जो पानी में भी रहता है लेकिन खुश्की पर भी चल फिर सकता है। जो एम्फीबियंस हैं जो पानी में अंडे देते हैं लेकिन खुश्की पे भी रह सकते हैं। इसके अलावा खुश्की पर हमें पौधों की बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नजर आने लगती है, बहुत सी मुख्तलिफ किस्म के पौधे नजर आने लगते हैं। और पौधे अब साहिल इलाकों से दूर, यानी जहाँ कोई पानी नहीं है, बहता पानी नहीं या साकिन पानी नहीं है, वहां पे भी पौधे नजर आने लगते हैं, क्योंकि वो बारिशें होती थी, वाटर साइकिल चल रहा था, तो उन्हें खुश्की पर भी मुनासिब पानी मिल जाता था। टेट्रापॉड्स हमें नजर आने लगते हैं जो ट्रू लैंड एनिमल्स हैं, यानी जो समुंदर से या दरिया से दूर भी रह सकते हैं, चल फिर सकते हैं। उस जमाने में ऑक्सीजन की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमें बहुत बड़े बड़े इंसेक्ट्स नजर आते हैं और एम्फीबियंस नजर आते हैं, रेप्टाइल्स नजर आते हैं। ये वो रेप्टाइल्स हैं जो खुश्की पर अंडे देने के काबिल थे। उससे पहले जो एम्फीबियन है वो या जो टेट्रापॉड्स थे वो पानी में अंडे देते थे, राइट। खुश्की पे अंडे देने से फिर ये हुआ कि इनका पानी से नाता बहुत कम रह गया और वो समुद्र से बहुत दूर भी रहने के काबिल हो गए। यही वो हैं रेप्टाइल जिनसे डायनासोर्स और मैमल्स इर्तिका पजीर हुए। फिर आपको पता है कि 6.5 करोड़ साल पहले, यानी 65 मिलियन ईयर्स साल पहले, एक बहुत बड़ा शहाबिया गिरा जमीन पर, जिससे बहुत बड़े बड़े जानवर जितने थे
خاص طور پر خشکی کے بڑے جانور وہ سب ختم ہو گئے, اور ڈائنوسار بڑے ختم ہو گئے سوائے پرندوں کے. پرندے بھی ڈائنوسارز ہیں, لیکن ڈائنوسارز کی ایک خاص قسم ہے, باقی تمام ڈائنوسارز ختم ہوئے. اس کے بعد میملز میں ڈائیورسفیکیشن شروع ہوئی, اور میملز پوری دنیا پر چھا گئے اور ڈومیننٹ اسپیشیز بن گئے. پھر میمل سے پرائمیٹس بنے, پھر پرائمیٹ سے آبویسلی انسان کا ارتقا ہوا. تو یہ جو گریجول چینج ہے یہ ہمیں فاسلز میں نظر آتی ہے. اور یہ اگر آپ فاسل کو کسی بھی اگر آپ پاکستان میں بھی کچھ میوزیم ایسے ہیں جہاں پہ فاسلز ملتے ہیں, لیکن اگر آپ کا کبھی جانا ہو ملک سے باہر تو مغربی ممالک میں کم و بیش ہر بڑے شہر میں میوزیم آف نیچرل ہسٹری ہوتا ہے, جس میں آپ کو پری کیمبرین سے لے کے آج کے زمانے تک کے تمام فاسلز یا کم از کم ان کے ریپلیکاز مل جائیں گے, اور آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ کہاں سے ملا تھا اور ان کا ارتقا کیسے ہوا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹرانزیشنز ہمیں فاسلز میں نظر آتی ہیں. جیسے میملز سے سمندری میملز, یعنی زمین پر چلنے والے میملز سے سمندری میملز کا ارتقا ہوا. خاص طور پہ ویل کا ارتقا ہمارے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ ویل کا ارتقا اس علاقے میں ہوا جہاں پہ اب پاکستان ہے. تو اگر آپ ایک جانور کا نام ہے, اب تو زندہ نہیں ہے, مطلب ایک ایکسٹنکٹ یعنی مدھوم شدہ اسپیشیز ہے, اس کا نام ہے پاکی سیٹس. پاکی سیٹس, اب سیٹس ایک نام ہے جو ویل کے ہر قسم کو سیٹس کہا جاتا ہے, رائٹ. سیٹس کا مطلب یہ ویل ہے, اور پاکی کا مطلب جو پاکستان میں ملی. تو پاکی سیٹس ایک جانور ہے جو سمندر اور خشکی دونوں پر رہنے کے قابل تھا, میمل تھا, اور پاکستان میں اس کے باقیات دریافت ہوئی ہیں. پاکی سیٹس کے علاوہ بھی پاکستان میں اور دوسرے علاقوں میں, بھارت میں بھی اور دوسرے دنیا بھر میں اب ویل کی ٹرانزیشن اس قدر تفصیل سے اب ڈاکومنٹ کی جا چکی ہے. یعنی میمل کے خشکی سے پانی میں دوبارہ منتقل ہونے کے جو مختلف سٹیجز ہیں ارتقاء کے, ان سب کے فاسلز مل چکے ہیں. تو اسی طرح گھوڑا ہے, ہاتھی ہے, سانپ ہے, ان کے ٹرانزیشن کے فاسلز اس قدر ہیں کہ اب اس بات میں کم از کم تعلیم یافتہ لوگوں میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سب ایوولوشن کے ذریعے ہی ارتقاء پذیر ہوئے. اگر ہم فاسل سے ہٹ کے آج کے زمانے میں جو کامن اعضاء ہیں, یعنی لمبڈ جنہیں کہتے ہیں, لمب سٹرکچر کی بات کریں تو سب سے پہلے تو ریڑھ کی ہڈی ہے, رائٹ. آپ ہاتھی دیکھیں, شیر دیکھیں, مچھلی دیکھیں, انسان دیکھیں, چیتا دیکھیں, کوئی بھی جانور دیکھیں جو جس کی ریڑھ کی ہڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی کا بنیادی سٹرکچر بالکل ایک سا ہے. اس کے ایک سائڈ پہ کھوپڑی ہوتی ہے, اسکل ہوتی ہے, اسکل کے نیچے مچھلیوں میں گردن نہیں ہوتی, لیکن ٹیٹراپوڈس اور اس کے بعد جو جانور خشکی پر ارتقاء پذیر ہوئے ان میں اسکل کے نیچے پھر گردن ہوتی ہے. اس کے بعد بیک بون آتی ہے. بیک بون کے وہ حصہ جو کھوپڑی کے پاس ہے یا گردن کے پاس ہے, اس میں پسلیاں ہوتی ہیں, ریبز ہوتی ہیں. ریبز سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہاتھ, یعنی شولڈر جوائنٹ, اور اس کے بعد پھر ہاتھ, رائٹ. اسی طرح نیچے جائیں, یعنی انسان کی اگر ہم بات کریں تو نیچے کا مطلب سر سے آپ پاؤں کی طرف جائیں تو اس کے بعد پھر ہمیں ریڑھ کی ہڈی کے وہ حصے ملتے ہیں جو صرف مہرے ہیں, ان میں ربز نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہمیں کولے کی ہڈی ملتی ہے. تو آپ کسی بھی جانور کو دیکھ لیں, اس میں ریڑھ کی ہڈی میں پہلے یہ پسلیاں ہوں گی, اس کے بعد مہرے ہوں گے, اس کے بعد یہ کولے کی ہڈی ہوگی, رائٹ. یہ سب سٹرکچر جو ہیں یہ آپ کو تمام ورٹیبریٹس میں کامن ملتے ہیں. اسکل کی بات کریں تو انسانی اسکل, انسانی جو کھوپڑی ہے وہ ایک ہڈی نہیں ہے, وہ کئی ہڈیوں سے مل کے بنی ہے. اور یہ بالکل جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں بالکل صاف دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ الگ الگ ہڈیاں ہیں, اور ان کے اگر آپ بچے کا بالکل سر کا ٹاپ دیکھیں, یہ والا حصہ, تو وہ خالی ہوتا ہے, اس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی. وہ اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ دماغ فیل کر سکتے ہیں. بچے کو اس جگہ پریس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان پروٹیکٹڈ ہوتا ہے دماغ. اور پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو 1-1.5 سال 2 سال کی عمر میں پھر یہ ہڈیاں آپس میں فیوز ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ اسکل ایک ہڈی کی طرح نظر آنے لگتی ہے. لیکن یہ اصل میں الگ الگ ہڈیاں ہیں, اور ہڈیوں کا اسکل کا یہ سٹرکچر جو ہے یہ تمام جانوروں میں ایسا ہی ہے. فش سے لے کے بلی کتے سے لے کے آپ کسی بھی ورٹیبریٹس میں, یعنی ریڑھ کے ہڈی والے جانوروں میں دیکھیں تو اسکل کا یعنی کھوپڑے کا سٹرکچر ایک سا ہی ہوگا. اس کے بعد بیک بون کی ہم نے بات کی تھی, تو بیک بون میں یہ سٹرکچر جو ہے سارے پسلیاں جس سے بھی بات کی تھی, کولے کی یہ کندھے کی ہڈی, رائٹ,
ये सब में जॉइंट ये एक जैसे होते हैं, इनमें मतलब उनके रोटेशन फर्क होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर जॉइंट एक से होते हैं। और फिर अभी हम नर्व्स की बात करेंगे। हर मोहरे से उस हिस्से की लिम्स की नर्व जो निकलती हैं वो भी तमाम जानवरों में एक सी होती हैं। इंसान के जो सबसे ज्यादा हसास आज़ा होते हैं वो पसलियों से प्रोटेक्टेड होते हैं, राइट। हमारे फेफड़े हैं, हमारा जिगर है, हमारा दिल है। ये सिर्फ इंसान में नहीं है, ये अक्सर वर्टेब्रेट्स में ऐसा ही है। यानी आप कुत्ता बिल्ली देखें, शेर देखें, सब में यही स्ट्रक्चर है कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो पसलियों से प्रोटेक्टेड होते हैं। ये सब ये कॉमनैलिटी है, राइट। और ये हमें साफ नजर आता है कि ये मछलियों से इर्तिका पजीर हुआ ये स्ट्रक्चर। गर्दन की हमने बात की थी, लिम्स भी बात की थी। अगर हम गर्दन का स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए, ये इंसान की गर्दन है। इसमें आप अगर गिन लें कितने मोहरे हैं, ये ज़राफे की गर्दन है। इंसान की गर्दन से कई गुना बड़ी है, लेकिन मोहरों की तादाद बिल्कुल वही है। आप एक एक मोहरा सुपर इम्पोज कर सकते हैं। और ये सिर्फ इंसान और ज़राफे की बात नहीं है, आप किसी भी वर्टेब्रेट्स को ले लें, उसमें अगर गर्दन है, यानी मछलियों को छोड़ के, मछलियों में गर्दन नहीं होती, तो गर्दन की हड्डियां की तादाद एक सी होती है, उनका स्ट्रक्चर एक सा होता है, सिर्फ उनकी लंबाई यानी उनकी पैमाइश मुख्तलिफ होती है। इसी तरह अगर आप हाथ पांव देखें, अब ये देखिए, ये इंसान का बाजू और हाथ है, तो उसमें देखिए एक हड्डी है, ये जिसे ह्यूमरस कहा जाता है। उसके बाद फिर ये दो हड्डियां हैं जिसे रेडियस और अल्ना कहते हैं। उसके बाद फिर ये हाथ की हड्डियां जिसमें बहुत सी हड्डियां होती हैं, राइट, जिसे कार्पल कहते हैं। और उसके बाद फिर ये 5 उंगलियां होती हैं जिसे फेलेंजेस कहते हैं। अब आप छपकली को देखें तो छपकली का अगर आप पाँव देखें, हाथ और पाँव दोनों की बात हो रही है, तो उसका स्ट्रक्चर भी वही है, एक हड्डी, दो हड्डियां, बहुत सी हड्डियां, उसके बाद 5 बाजू। बिल्ली कुत्ता देखें, वेल को देखें, वेल का बज़ाहिर इंसानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वेल की अगर आप वो देखें, फिन्स जिन्हें कहते हैं, जिनसे वो पानी में तैरती हैं, एक हड्डी, ये दो हड्डियां, इसके बाद बहुत सी हड्डियां, और ये फिर आपको एक छोटा सी ये उंगली नजर आएगी। बाकी ये उनका जो फिन्स हैं उसके अंदर छुपी हुई हैं, ये नजर नहीं आती, लेकिन अब हम जानते हैं कि उनके अंदर हड्डियों का स्ट्रक्चर यही है। चमगादड़, चमगादड़ का भी यही है, एक हड्डी, दो हड्डी, उसके बाद ये 5 उंगलियां। मेंढक और ये परिंदे, परिंदों में भी बिल्कुल यही, एक हड्डी, दो हड्डियां, उसके बाद ये उनका जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे हाथ के जो उंगलियां, सॉरी, बहुत सी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ये उसका ये है। और उसके बाद पर जो है वो उनकी 3 उंगलियां साफ नजर आती हैं, 2 उंगलियां इनकी मादूम हो चुकी हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं। इसी तरह अगर आप जबड़े देखें तो जबड़ों का स्ट्रक्चर तमाम मैमल्स में एक सा है। मैमल और फिश के जबड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन तमाम मैमल्स में जबड़ों का जो साख्त है वो एक सी है। दुम, बहुत से मैमल्स हैं, बहुत से वर्टेब्रेट्स हैं, अक्सर वर्टेब्रेट्स की दुम होती है। और ग्रेट एप्स में जाहिर है दुम नजर नहीं आती, लेकिन जिस्म के अंदर दुम मौजूद होती है। इंसान की भी दुमची की हड्डी है जो जिस पे हम बैठते हैं, और वो आप अगर किसी भी कोई स्कूल में या कॉलेज में अगर वो लेबोरेटरी में कहीं ढांचा पड़ा है तो आप उसमें देख सकते हैं कि दुमची की हड्डी इंसान में भी होती है। अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो दिल हर जानवर में, हर वर्टेब्रेट में दिल होता है। मतलब इंसेक्ट्स में थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन इंसेक्ट्स में भी दिल का स्ट्रक्चर है, लेकिन वो बाकी उनसे मुख्तलिफ है। लेकिन जो वर्टेब्रेट्स हैं उनमें सब में दिल का स्ट्रक्चर कम बेश एक सा होता है, क्योंकि दिल का मकसद जो है वो पंप करना होता है, राइट। ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम कम बेश एक सा है। यह है, मछलियों में दिल ज़रा सिंपल होता है, इसमें 2 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियंस अगर आप आएँ जो पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं, उनके दिल में 3 चैम्बर होते हैं, क्योंकि अब उन्हें खुश्की पर सांस लेना है तो फेफड़ों की तरफ उनका खून जाना को जो इर्तिका जो उस सिस्टम का हुआ, उस वजह से दिल में एक और चैम्बर का इर्तिका हुआ। और उसके बाद फिर मैमल्स जो मुकम्मल तौर पर खुश्की पर रहते हैं, अगर आप समुद्री मैमल्स को छोड़ दें, वो तो बाद में समुद्र में गए थे, तो उनमें अब चूंकि मुकम्मल तौर पर हवा से ऑक्सीजन लेनी है, तो इसलिए उनमें फिर 4 चैम्बर्स का इर्तिका हुआ। तो मैमल्स और परिंदे, इनमें दिल में 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन तमाम ये जो जानवर हैं इनमें दिल का बुनियादी स्ट्रक्चर एक सा है। अगर आप फेफड़ों का स्ट्रक्चर देखें तो
फेफड़ों का इर्तिका मछलियों में उस वक्त हुआ जब मछलियां अभी पानी में ही थी। मछलियों में एक स्विम ब्लैडर होता है, जो एक उज्व है जो जिसमें गैस भर के मछलियां अपनी बायोंसी को तब्दील करती हैं। यानी मछली अगर बहुत गहराई में है तो वो स्विम ब्लैडर से हवा निकाल देती है, उससे उसकी कसाफत बढ़ जाती है और वो नीचे चली जाती है, राइट। अगर उसको ऊपर आना हो तो वो स्विम ब्लैडर में हवा भरने लगती है। वो उसके जिस्म में ऐसे मैकेनिज्म है जिससे गैस बनती है और वो स्विम ब्लैडर में भरती है। उसके अलावा मछलियां जो उथले पानी में रहती हैं वो हवा में यानी गल्प लेकर, यानी हवा का घूंट भर के इफ यू विल, वो स्विम ब्लैडर में हवा भर लेती हैं और उनके फिर स्विम ब्लैडर को मसल्स होते हैं जो उसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से वो अपने जिस्म की कसाफत तब्दील करती हैं। कुछ मछलियों में स्विम ब्लैडर में ऑक्सीजन एक्सचेंज भी होती है। लंग फिश एक बहुत मशहूर मछली है जो खुश्की पे भी रह सकती है। उसके बाकायदा फेफड़े हैं जो स्विम ब्लैडर की ही एक तब्दीलशुदा फॉर्म है। तो लंग्स यानी फेफड़ों का इर्तिका ही स्विम ब्लैडर से हुआ था। और जो खुश्की पर जो जानवर चलते हैं टेट्रापॉड्स, उनमें लंग्स बिल्कुल एक से हैं सब। डाइजेस्टिव सिस्टम तमाम जानवरों में, यानी जानवरों से मैं यहाँ अब मुराद वर्टेब्रेट्स यानी फकारी जानवर ले रहा हूँ जो हमें रोज नजर आते हैं। तमाम जानवरों में डाइजेशन का सिस्टम कमोबेश एक सा है। कुछ जो बहुत ही जो एंशिएंट जानवर हैं जैसे जेलीफिश है, स्पॉन्जेस हैं, उनमें सिर्फ एक ट्यूब होती है और एक ही ओपनिंग होती है, वो वहीं से खुराक जाती है, वहीं से वापस निकलती है। लेकिन वर्टेब्रेट्स में एक सिरा सुराख को हासिल करने के लिए होता है और दूसरा सिरा सुराख खुराक को यानी जो हजमशुदा मटेरियल है, जो फुजलात हैं, वो खारिज करने के लिए होता है। तो एनस तमाम वर्टेब्रेट्स में अलग होती है। ये स्ट्रक्चर हर वर्टेब्रेट में एक सा है। आपने कुर्बानी के अगर कभी जानवर देखे हों, जब कुर्बानी करते हैं तो उनके जब वो अंदरूनी अज़ा निकालते हैं, अभी कुर्बानी की ईद आने वाली है, उस पर गौर कीजिएगा। अंदरूनी स्ट्रक्चर भेड़ का, गाय का, बकरे का, ऊंट का, सब बिल्कुल एक से होते हैं। और जो स्ट्रक्चर है हलक का, और हलक से जो ग़िज़ा की नाली है जिसे हम एसाफेगस कहते हैं, और उसके बाद फिर मैदा, और मैदे से फिर छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और जो मैदे के प्रोसेसेस हैं और जो छोटी आंत के प्रोसेसेस हैं और बड़ी आंत के प्रोसेस हैं, ये तमाम वर्टेब्रेट्स में बिल्कुल एक से हैं। किडनीज, गुर्दों का इर्तिका बहुत पहले हो चुका था, तकरीबन 55 करोड़ साल पहले, जब अभी जानवर अभी समुद्रों में ही थे। किडनी के खुलिये जो हैं, किडनी के अंदर खुलिये होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, राइट। वो खुलिये उस वक्त भी बहुत जो प्रिमिटिव जिस्म थे उनसे वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन निकालते थे, जब अभी किडनी एज ए ऑर्गन का भी इर्तिका नहीं हुआ था। यानी एक जमाना था बहुत पुराने जानवरों में जब नेफ्रॉन्स यानी वो खुलिये जो अब किडनीज में है, वो जिसमें मुख्तलिफ जगहों पे होते थे और वो अलग अलग काम करके टॉक्सिन्स निकालते थे। यानी फिल्ट्रेशन सिस्टम उससे पहले भी मौजूद था, लेकिन किडनीज के इर्तिका पजीर होने से पेचीदगी मुमकिन हुई कि टॉक्सिन्स निकालने का प्रोसेस जो था वो ऑर्गेनाइज हो गया, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर पेचीदा ऑर्गन्स बनने का अमल आसान हो गया, राइट। और समुद्र में जो जानवर रहते हैं उनके गुर्दे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जब खुश्की से जानवर समुद्र से जब खुश्की पर आए तो आहिस्ता आहिस्ता उनके गुर्दे भी तब्दील होने लगे। अब समुद्र में पानी में नमक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए समुद्री जानवरों के जो गुर्दे हैं वो जिस्म से नमक निकालने का काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करते हैं। लेकिन जब पानी से खुश्की पर जानवर आए एक्सक्यूज मी, तो अब गुर्दों की जिम्मेदारी जो थी वो तब्दील हो गई, इसलिए गुर्दों का इर्तिका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। अब जिस्म से टॉक्सिन निकालने के लिए इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें पानी पीना पड़ता है। समुद्री जानवर जो है, खासतौर पर मछलियां, वो बहुत कम पानी पीती हैं, लेकिन जो खुश्की पर जानवर हैं हमें ज्यादा पानी पीना पड़ता है, इसलिए कि हमारे गुर्दों का इर्तिका इस तरह से हुआ है कि उन्हें टॉक्सिन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी, यही वजह है कि अगर हम थोड़ी देर पानी ना पिए तो हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इसलिए कि गुर्दे मुसलसल काम करते रहते हैं। इसी तरह हम सुबह जब उठते हैं तो हम डिहाइड्रेटेड होते हैं। सुबह उठकर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी रात गुर्दे काम करते रहे हैं, पसीना गर्मियों में खासतौर पर, तो हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, राइट। डिहाइड्रेशन गुर्दों के लिए जहर है, और वो इसीलिए कि खुश्की पर जो इर्तिका हुआ उसके लिए भी
وہ جانور شروع سے پانی بہت زیادہ پیتے رہے ہیں. پینکریاس لبلبا جس میں جو انسولین کی ضرورت ہے وہ ہر خلیے کی ہوتی ہے, کیونکہ شوگر یعنی گلوکوز کو میٹابلائز کرنے کے لیے اور خلیوں کے اندر داخل ہونے کے لیے جہاں وہ میٹابلائز ہو سکیں, انسولین ایک ہارمون ہے, اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پینکریاس کا ارتقاء بھی بہت پہلے ہو چکا تھا, یعنی تقریباً 50 کروڑ سال پہلے پینکریاس کا ارتقاء ہو چکا تھا. اور تمام یعنی انورٹیبریٹس جو ہیں ان میں بھی ہمیں پینکریاس کا فنکشن نظر آتا ہے. وہ آرگن اس قسم کا نہیں ہے, آرگن مختلف ہے, لیکن اس کا مطلب کہ فنکشن اس سے بھی پہلے ارتقاء پذیر ہو چکا تھا. فنکشن جیسے میں نے عرض کیا تھا, انسولین پیدا کرنا ہے. وہ انسولین ہارمون ہے جو گلوکوز کو خلیوں کے اندر داخل ہونے میں مدد دیتا ہے, جہاں پہ پھر یہ میٹابلائز ہوتے ہیں. جگر بھی ہر جاندار میں جگر کا فنکشن بالکل وہی ہے جو انسانوں میں ہے. جگر کم از کم 70 کروڑ سال پہلے جو جانور ہم سے الگ ہو چکے تھے, جن کے اجداد ہم سے الگ ہو, ان میں بھی جگر کا فنکشن ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ تمام کامنالٹیز ہمیں ارتقاء کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ارتقاء کیسے ہوا تھا. تو بڑا باڈی بننے میں کڈنیز اور لیور کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یعنی یہ لیور بھی کڈنیز کی طرح ٹاکسنز جسم سے نکالتا ہے. اس کے علاوہ جگر کے اور بہت سے کام ہیں, لیکن میٹابلائز کرنے کے لیے جو ہمیں پاتھ ویز چاہیے ہوتے ہیں, اگر آپ کبھی یہ اسٹڈی کریں کہ انسانی جسم میں جو میٹابولک پاتھ ویز ہیں جو ہر خلیے میں ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا جگر کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے, اور جو جگر میں جو میٹابولزم ہو رہا ہوتا ہے اور جگر سے پھر جو پروڈکٹس بن کے نکلتے ہیں وہ خلیوں تک پہنچتے ہیں, وہاں پہ مزید میٹابولزم ہوتا ہے, اور وہاں سے جو کیمیکلز نکلتے ہیں جن میں کچھ ٹاکسنس ہیں کچھ ٹاکسن نہیں ہے, وہ دوبارہ خون کے ذریعے جگر تک پہنچتے ہیں. یہ پورے کا پورا میکانزم ہے, بہت فیسینیٹنگ ہے, اور یہ تمام جانوروں میں بالکل ایک سا ہے. پھر اب ہم اگر نروس سسٹم کی بات کریں تو نیورونز جو کہ نروس سسٹم کی اور ہمارے جو برین ہے, دماغ ہے, اس کے تمام کا تمام فنکشن نیورون سے ہوتا ہے, رائٹ. لیکن نیورون صرف انسان میں نہیں ہے, حشرات میں بھی نیورونز ہیں, اور کم و بیش اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح انسانوں میں کام کرتے ہیں. سمندری جانور, مچھلیاں جو ہیں, کیڑے مکوڑے, پرندے, آپ کوئی بھی جانور اٹھا کے دیکھ لیں, کثیر خلوی جانور, اس میں ایون جن جانوروں میں دماغ نہیں ہے, مثلاً جیلی فش, اس میں دماغ نہیں ہوتا, نیورونز اس میں بھی ہیں, ان میں نروس سسٹم اس میں بھی ہے, صرف یہ کہ وہ سینٹرلائز نہیں ہے, رائٹ. تو نیورونز کا ارتقاء تقریباً 80 کروڑ سال پہلے ہو چکا تھا. اس کا ہمیں کیسے علم ہے؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ انواع جن کے اجداد ہم سے 80 کروڑ سال پہلے الگ ہو چکے ہیں, ان میں بھی نیورونز این اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح انسانوں میں کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ یہ کامن سٹرکچر ہے, اس لیے ان کا ارتقاء کم از کم 80 کروڑ سال پہلے ہو چکا تھا. اور دماغ کا سٹرکچر دیکھیں تو آپ مچھلی کا دماغ دیکھ لیں, آپ کسی مکھی کا دماغ دیکھ لیں, آپ کسی پرندے کا دماغ دیکھ لیں, آپ ہاتھی, شیر, چیتے کا دماغ دیکھ لیں, آپ کسی ایمفیبین کا دماغ دیکھ لیں, بنیادی سٹرکچر آپ کو ایک سے نظر آئیں گے اس میں. تو سمپل برین سٹرکچرز تقریباً 70 کروڑ سال پہلے ارتقاء پذیر ہونا شروع ہو چکے تھے. ورٹیبریٹس میں یعنی فقاری جانوروں میں, یعنی جو ریڑھ کے ہڈے والے جانوروں میں, انہی سمپل سٹرکچر سے دماغ زیادہ پیچیدہ ہوا. پھر جب جانور خشکی پر آئے تو خشکی پر چیلنجز چونکہ مختلف تھے, اس لیے ان خشکی کے جانوروں کا دماغ جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہے اور ان میں ذہانت زیادہ ہے مچھلیوں کی نسبت. جتنے یہ ٹیٹراپوڈس ہیں ان میں ذہانت مچھلیوں کی نسبت زیادہ ہے. اب پھر ذہن میں رکھیے کہ سمندر میں میملز بھی ہیں جو بہت ذہین ہیں, رائٹ. ہم یہ اکثر سنتے ہیں کہ ڈولفن بہت ذہین ہے یا ویل بہت ذہین ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ میملز ہیں, ان کا ارتقاء خشکی پر ہوا تھا, اس کے بعد وہ سمندر میں واپس گئے, وہ مچھلیاں نہیں ہیں. برین کا اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں تو نچلے اسٹرکچر جو ہیں برین سٹیم, وہاں پہ زندگی کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں, بلڈ پریشر کنٹرول, یا جو جانور جیسے ورٹیبریٹس ہیں جو اپنے جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کر سکتے ہیں, ان میں درجہ حرارت کا کنٹرول, تنفس کا نظام, وہ اس کا کنٹرول, وہ سارے کا سارا برین سٹیم سے ہوتا ہے. وہ سب جانوروں میں مشترکہ ہے اور ایک ہی طرح کام کرتی ہے. فرنٹل کورٹیکس تمام جانوروں میں ہے, انسانوں میں بڑی ہے. فرنٹل کورٹیکس میں جو لاجیکل تھنکنگ ہے وہ ہوتی ہے, اور انسانوں میں چونکہ یہ باقی جانوروں کی نسبت بڑی ہے, آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں, اس لیے ان میں
जो जहानत बाकी जानवरों से आपको ज़्यादा मिलती है, राइट। लेकिन तमाम जानवरों में दिमाग की बुनियादी जो जिम्मेदारी वो क्या है, जानवर को जिंदा रखना, हर मुमकिन तरीके से जिंदा रखना, राइट। तो वो जो जानवर आज जिंदा हैं, जो अनवा लाखों साल से मौजूद हैं, वो जाहिर है उनका दिमाग उनके माहौल के लिए बेहतरीन मुताबिकत पैदा कर चुका है, इसलिए वो जिंदा है, क्योंकि दिमाग का काम ही जानवरों को जिंदा रखने, हर मुमकिन तरीके से जिंदा रखना है। नर्वस सिस्टम की बात करें, अभी हमने पहले जब हमने रीढ़ की हड्डी की बात की थी तो हमने नर्वस सिस्टम की बात की थी कि रीढ़ की हड्डी से के ऊपर यहाँ पे ब्रेन स्टेम होती है, राइट। ये दिमाग है और रीढ़ की हड्डी के ऊपर ब्रेन स्टेम होती है, यानी दिमाग का जो ये दिमाग का हम इसको समझ लीजिए कि नीचे से देख रहे हैं, तो दिमाग के निचले हिस्से से वो मेजर नर्व्स निकलती हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व है, या अगर आप ये देखें तो कैरेनियल नर्व है, या अगर आप देखें तो फेशियल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, जो आंखों से इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचाती है। ये तमाम नर्व्स का बुनियादी जो आर्किटेक्चर है वो तमाम जानवरों में एक सा है। स्पाइनल कॉर्ड का बुनियादी आर्किटेक्चर तमाम जानवरों में एक जैसा है, यानी फकारी जानवरों में, यानी जो रीढ़ के हड्डी वाले जानवरों में, यानी किस मोहरे से कौन सी नर्व्स निकल के किस उज़ तक जाएंगी, वो तमाम जानवरों में एक सा है बिल्कुल। यानी अगर आप सर्वाइकल नर्व्स देखें तो वो 8 नर्व्स के वो हैं, एक सेट है समझ लीजिए। थोरेसिक नर्व हैं जो यहाँ से निकलती हैं, हर मोहरे से अलग अलग हिस्से को नर्व निकलती हैं, फिर जो नीचे वाले लिम्स हैं उनकी नर्व्स यहाँ से निकलती हैं। तो ये आपको जैसे ट्राइजेमिनल नर्व है जो मुख्तलिफ, अगर आप खोपड़ी को देखें ना, इंसान की खोपड़ी हो, जानवर की खोपड़ी हो, ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो मुख्तलिफ जो खोपड़ी के हिस्से हैं, चेहरे के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, उनसे इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचाती है। वेगस नर्व है जो चौथे या छठे मोहरे से जिस्म में जाती है। ये हर वर्टेब्रेट में एग्जैक्टली एक ही तरीके से जाती हैं ये। इसी तरह एक जो खास तौर पे बात की जाती है, लेरेंजियल नर्व है, जो हमारे नरखरे को कंट्रोल करती है। देखिए हमारा नरखरा कमोबेश यहाँ पे होता है, गर्दन के पास होता है, इस जगह पे। लेरेंजियल नर्व दिमाग से निकलती है, हमारे दिल तक जाती है, दिल के से फिर वापस आती है और फिर हमारे नरखरे तक जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मछलियां जब, यानी आज से करोड़ों साल पहले जब हमारे अजदाद समुद्र में थे, और मछली में आज तक ऐसा ही है, दिल, क्योंकि उनमें गर्दन नहीं होती, दिल और दिमाग एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, और वो दिल के एक शरियान के ऊपर से कर्व होके वो उनके गले तक जाती है। अब जब वर्टेब्रेट्स का इर्तिका हुआ, और ख़ास तौर पे फिर जब गर्दन का इर्तिका हुआ, और फिर जो वर्टेब्रेट्स थे वो खुश्की पर आए और उनकी गर्दनें लंबी हुई, तो वो जो लैरिंजियल नर्व है वो भी इसी तरह लंबी हो गई और उसके बाद फिर वापस जाती है। अगर आप ज़राफ़ा देखें, ज़राफ़ा के हमने अभी गर्दन के वो स्ट्रक्चर देखा था, ज़राफ़ा की गर्दन कई मीटर लंबी होती है, और वो दिमाग से वो नर्व निकलती है, वो उसके दिल तक जाती है कई मीटर, उसके बाद वापस कई मीटर आती है उसके नरखरे तक, जो उसके हलक के पास है, यानी गर्दन के ऊपर के हिस्से तक, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि ये इर्तिकाई बाकियात हैं, और इर्तिकाई प्रोसेस में कोई सोच इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि वक्त के साथ साथ छोटी मोटी जो तब्दीलियां होती हैं उनमें पुराने स्ट्रक्चर्स की बाकियात हमें नजर आती हैं। कॉमन सेंसेस है, यानी टेस्ट की सेंस है, वो तमाम जानवरों में तकरीबन एक तरह काम करती है। वो जो जबान से टेस्ट हो, या कुछ जो हशरात हैं वो अपनी टांगों से टेस्ट करते हैं, उनके टांगों पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लेकिन उन टेस्ट बर्ड्स का स्ट्रक्चर कम बेश वही होता है जो इंसान में या जो वर्टेब्रेट्स में जबान में जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनका होता है, राइट। विजन, तमाम जानवरों में विजन का बेसिक स्ट्रक्चर, विजन क्या है? एक प्रोटीन होती है जिसे ऑप्सिन कहते हैं, राइट। वो ऑप्सिन, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उस पर रोशनी पड़ती है, खास फ्रीक्वेंसी का फोटोन पड़ता है, तो उसकी कंफर्मेशन तब्दीली, यानी उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। उस तब्दीली से वो उसके साथ एक न्यूरॉन अटैच होता है, वो न्यूरॉन फायर होता है, और वो मैसेज दिमाग तक पहुंचता है कि अभी इस जगह पे रोशनी का फोटोन आया था। उस तरह से विजन बनती है, और ये विजन हर जानवर में
एन एक ही तरीके से काम करती है। और मजे की बात यह है कि ऑप्सिन प्रोटीन जो हमारी आंख में भी है, जो मछली की आंख में भी है, जो हशरात की आंख में भी है, ऑप्सिन प्रोटीन सिंगल सेल बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। तो यानी प्रोटीन्स जिनसे नजर का बनना मुमकिन हुआ वो 80 करोड़ साल पहले इर्तिका पजीर हो चुकी थी, जब अभी मल्टी सेलुलर बॉडी इर्तिका पजीर नहीं हुई थी। हियरिंग, मछलियां पानी में रहती हैं, पानी में आवाज बहुत आसानी से सफर करती है क्योंकि पानी की कसाफत ज्यादा होती है। तो मछलियों के सुनने का निजाम सिर्फ एक हड्डी पर मुश्तमिल है, उनके कान में सिर्फ एक हड्डी होती है। जब टेट्रापॉड्स पानी से खुश्की के मुंतकिल हुए तो अब हवा में आवाज सुनना उनके लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत आवाज वो सुन सकते थे। तो उनमें जो ऐसे जानवर थे जो दूसरों की निस्बत जरा बेहतर आवाज सुन सकते थे, जाहिर है कि वो खतरा, आवाज सुन के खतरा पहचान कर वो वहां से भाग जाते थे। तो इस तरह से खुश्की पर रहने वाले जानवरों में बेहतर आवाज सुनने का सिस्टम जो उसका इर्तिका हुआ। और अब हम ये जानते हैं कि मछलियों के जबड़े की एक हड्डी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन तब्दील करने लगी और वो अब हमारे कान की हड्डी बन चुकी है। हमारे का मतलब जो वर्टेब्रेट, खुश्की पे जो वर्टेब्रेट्स हैं, मैमल्स के खासतौर पर, तमाम मैमल्स के कानों में हड्डियों का स्ट्रक्चर जिनसे हम सुनते हैं, जिससे तमाम मैमल सुनते हैं, बिल्कुल एक से है। और वो 3 हड्डियों से बने हैं और उनमें से 2 हड्डियां जो हैं वो जबड़े की हड्डियां हैं, यानी जो मछली में जबड़े की हड्डियां हैं उनके हम होमोलोगस हैं वो, राइट। छूने के हिस्स, इसी तरह स्मेल, सबसे पुरानी स्मेल जो है जिंदगी की तारीख में, वो सबसे जो पुरानी सेंस है यानी हिस्स है वो सूंघने की हिस्स है। सूंघने का मतलब क्या है कि माहौल में कुछ मॉलिक्यूल तैर रहे हैं और आप उनको डिटेक्ट कर रहे हैं। पानी में सूंघने का अमल पानी में मौजूद मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करना है, राइट। तो जब पानी में थे तमाम जानवर तो सूंघना और चखना कमोबश एक ही चीज थी, क्योंकि पानी में ही सूंघते थे, चखते थे। लेकिन खुश्की पर आने के बाद सूंघने और चखने का अमल जो है वो अलग अलग हो गया, राइट। लेकिन बेसिकली टेस्ट और स्मेल दोनों का बुनियादी काम क्या है? कुछ केमिकल अगर वो जो सेंसर्स हैं उनको आकर टच करें तो वो सेंसर फायर करते हैं, यानी उनके साथ जो न्यूरॉन है वो फायर करते हैं, राइट। टेस्ट में वो सेंसर तब फायर करते हैं जब वो केमिकल पानी में हल हो। सूंघने में जो खुश्की पर जो जानवर हैं उसमें अब ये है कि उन्हीं किस्म के सेंसर्स में तब्दीलियां आई जिनसे अब हवा में जो मॉलिक्यूल हैं, अच्छा आपको पता है कि हवा में जो मॉलिक्यूल हैं वो जब नाक में मर जाते हैं तो एक एपिथेलियल लेयर है नाक के अंदर, वो गीली होती है। तो वो मॉलिक्यूल फिर वही है कि वो पानी में जाते हैं और पानी में जाके ही वो डिटेक्ट कर पाते हैं। अगर बिल्कुल खुश्क हो जाए वो लेयर तो फिर हम नहीं सूंघ सकते। तो ये सब चीजें हैं, यानी बहुत सी चीजें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं उसकी बात हम फिर अगले सेशन तक छोड़ते हैं और आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, इसलिए कि मॉलिक्यूल सेक्शन जो है वो बहुत दिलचस्प है। खासतौर पे आप में जो लोग बायोकेमिस्ट्री को समझते हैं वो लोग, उनके लिए तो शायद वो ये नई चीज़ नहीं होगी। जो लोग बायोकेमिस्ट्री को नहीं समझते उनके लिए शायद ये बहुत दिलचस्प एक चीज़ होगी। तो हम आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। तो अब आपके जहन में अगर कोई सवाल है आज जो मैंने मटेरियल कवर किया इस बारे में या जो पिछले लेक्चर में कवर किया था तो ज़रूर पूछिएगा। जी, सवाल जवाब का बाकायदा आगाज हम लोग करते हैं। जब तक आप लोग सवाल का कुछ सोच रहे हैं, मैं आपको फिर दोबारा ये रिमाइंड करा दूं कि ये जो लेक्चर सीरीज है ये मैंने इसीलिए ओपन एंडेड रखी है। जितनी ज़रूरत होगी, जब तक ज़रूरत होगी तब तक हम ये चलते रहेंगे, जब तक ये सारा मटेरियल जो है कवर ना हो जाए। और आप जितने सवालात करेंगे उससे मुझे ये बेहतर मदद मिलेगी अपने अगले लेक्चर्स को तरतीब देने में कि किस चीज़ में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा है और किस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। अभी तक तो मैं जो बुनियादी चीज़ें हैं वही कवर कर रहा हूँ, राइट। तो 1-2 लेक्चर और गालिबन होंगे जो बुनियादी उस पे होंगे, जो इसकी इर्तिका के जो शोहद हैं। उसके बाद फिर हम उस हिस्से में जाएंगे जो सीरीज का मेन मकसद है कि हमारे यहाँ इर्तिका के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं उन पर बात की जाएगी, राइट।
लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सबको ये जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है ये समझ में आ जाए। दूसरी बात ये मैं ये कहूँगा कि जब ये लेक्चर का जो ये हिस्सा है जिसमें एविडेंस की बात हो रही है, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ये पूरी की पूरी जो प्रेजेंटेशन है ये एक PDF फाइल की सूरत में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। पहला सवाल जो हमारे पास है वो जवेरिया बहादुर साहिबा का है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैम काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछिए अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई वालेकुम ऑडिबल? सलाम। जी जी बिल्कुल। सर मेरा जो क्वेश्चन है कि स्टार्ट में जो मेन एविडेंस है ना वो आता है कि फॉसिल्स की बेस पे, लेकिन ऐसा भी तो एक है ना, जैसे पिल डाउन फॉसिल जो था, पिल डाउन मैन सबसे जो फेमस एक चीज है कि वो फैब्रिकेटेड था, और इसी तरह से बहुत से फॉसिल्स हैं वो फैब्रिकेटेड थे। जब इस तरह की चीजें मिलती हैं ना तो ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन भी हो जाता है, और बहुत से लोग इसको एज एन एविडेंस यूज करते हैं अगेंस्ट द एवोल्यूशन, कि वो कहते हैं कि जैसे डार्विन ने मेन इसको कहा था कि मिसिंग लिंक है। इस तरह से बहुत सारे हम कैसे यकीन कर लें कि जितने फॉसिल्स हैं वो ठीक हैं या नहीं है। तो क्योंकि जब मैं इसको एक्सप्लोर करी थी और इस पे डिस्कशन हुई थी एक प्रोफेसर के साथ जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था 10 साल, तो उन्होंने इसको मुझे एक एज एन आर्गुमेंटेशन के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि ये फॉसिल था, ये एक बड़ी चीज है कि जिसको पहले बहुत ज्यादा मिसिंग लिंक कंसीडर किया जाता था, लेकिन ये फैब्रिकेट, हम कैसे यकीन करेंगे कि जो बाकी सारे फॉसिल्स हैं उनमें इतनी लाइक वो फैब्रिकेटेड नहीं है? जी, तो देखिए अब मैं जो बात करूंगा वो शायद आपको थोड़ी सेंसिटिव लगे। मेरा मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आर्गुमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, राइट? अगर कोई शख्स बिलफर्ज आपके मोहल्ले में आता है और वो कहता है जी कि वो हाफिज कुरान है, और हाफिज कुरान बनकर वो आपको धोखा देता है और आपसे पैसे हथिया के चला जाता है, तो आप क्या कहेंगे? उस शख्स ने धोखा दिया, या ये कि खुदा न खास्ता कुरान पे आपका एतबार कम हो गया है? क्या कहेंगे आप? राइट? हम हर सर ऑब्वियसली ये होगा जी, हर जी शऊर शख्स ये कहेगा कि उस शख्स ने धोखा किया, लेकिन एक जो प्रिंसिपल है जिसके बहुत सारे शवाहद मौजूद हैं, उसमें एक शख्स के धोखे से हम उस पूरे के पूरे, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में यू डोंट थ्रो बेबी विद बैथ वाटर, राइट? कि आप उस शख्स की गलती को तस्लीम करेंगे कि उसने गलत काम किया, उसने जो शवाहद पेश किए थे उसको आप अपने तारीख से निकाल देंगे, लेकिन आप एक साइंसी नजरिए को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं करते कि करोड़ों शवाहद में एक जो मुशाहदा था वो फ्रॉड पाया गया, राइट? आपको पता है पिल्ट डाउन आज 2026 चल रहा है, पिल्ट डाउन का फ्रॉड कब हुआ था? आज से लगभग 100 साल पहले। आपको ये इल्म है कि इस वक्त दुनिया भर में करोड़ों फॉसिल्स मौजूद हैं और उनमें 99.99% से ज्यादा जेन्युइन है, असली है, राइट? दूसरी बात ये ज़हन में रखनी चाहिए कि साइंस ऊपर से नहीं आती, साइंस खुद ब खुद नहीं होती, साइंस इंसान करते हैं, यानी साइंसी तहकीक इंसान करते हैं। इंसानों में अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं, राइट? इस किस्म के फ्रॉड सिर्फ बायोलॉजी में नहीं हुए, साइंस के हर फील्ड में होते हैं। अभी आज से 1 साल पहले फिजिक्स में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था कि एक साइंसदान ने दावा किया था कि उन्होंने लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी दरियाफ्त की है, उसके बहुत चर्चा हुआ था, बाद में पता चला कि वो फ्रॉड था। अब आप ये बताएं कि उसकी बुनियाद पे आप क्या कहेंगे कि उस शख्स ने फ्रॉड किया था या सुपर कंडक्टिविटी नाकाबिले एतमाद है? हम ये नहीं कहेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी नाकाबिले एतमाद है, क्योंकि उसके हजारों शवाहद मौजूद हैं। हम ये कहेंगे कि उस शख्स ने फ्रॉड किया। तो साइंस इंसान करते हैं, इंसान में अच्छे बुरे इंसान होते हैं, तो यस इंसानों ने फ्रॉड किया। वो एक फ्रॉड 100 साल पहले हुआ था, उस फ्रॉड को साइंसदानों ने पकड़ा था, और साइंसदानों ने ही, साइंस की ही ये खूबी है कि वो अपनी गलतियां खुद पकड़ती है और अपनी गलतियां निकाल कर अपने आप को पहले से बेहतर कर देती है, राइट? जब क्वांटम फिजिक्स में नील बोर ने जो मॉडल शुरू में तरतीब दिया था, उससे पहले जो मॉडल एटम का बनाया गया था, जिसे प्लम मॉडल कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, राइट? वो मॉडल गलत था। उसके बाद साइंस को बेहतर जब टेक्नोलॉजी मिली तो हमने उससे बेहतर मॉडल बनाए। नील बोर का जो मॉडल था उससे बेहतर था। आज का जो मॉडल है वो नील बोर के मॉडल से बहुत बेहतर है।
تو سائنس اسی طرح اپنی غلطیاں درست کرتی ہے. اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نیل بورز نے فراڈ کیا تھا, اس زمانے کے لحاظ سے جو کچھ اس کو علم تھا اس کے مطابق وہ درست تھا, لیکن اب ہمیں اس سے زیادہ علم ہے. تو ایک فراڈ کو پکڑ کر یہ کہنا کہ لاکھوں شواہد قابل اعتماد نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بات فراڈ تھی, یہ بائسڈ سوچ ہے. یہ سوچ تب آتی ہے جب ہم نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہو کہ اس نظریے کو ہر قیمت پر غلط قرار دینا ہے. ورنہ اگر آپ دیانتداری سے پوچھیں تو جیسے میں نے عرض کیا تھا, اگر کوئی شخص مذہب کے نام پر فراڈ کرتا ہے تو ہم اس شخص کو مجرم قرار دیتے ہیں, ہم اس کے لیے مذہب کو نہیں چھوڑ دیتے. تو سائنس میں ہم پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر 100 سال پہلے ایک شخص نے فراڈ کیا تھا تو ہم سائنس کے پورے نظریے کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسی منطق ہے؟ یہ منطق کی بات نہیں ہے, یہ بائس سوچ ہے. یہ تب آتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نظریہ قابل اعتماد نہیں لگتا, اور اس کے لیے پھر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں. ورنہ سائنس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں درست بھی سائنس ہی کرتی ہے. سائنس میں فراڈ بھی ہوتا ہے, میں نے بھی مثال دی تھی, ایسے بہت سی مثالیں ہیں. سائنس کے ہر شعبے میں فراڈ ہوتا ہے, اس لیے کہ کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے دھوکہ دینا وہ ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا. لیکن سائنس ایز اے میتھڈالوجی ایک شفاف فیلڈ ہے جس میں ہر چیز پبلش کی جاتی ہے, اس پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. تو اب آپ یہ بھی پڑھیے گا کہ پل ڈاؤن کا جو فراڈ تھا وہ کیسے پکڑا گیا تھا. وہ سائنسدانوں نے پکڑا تھا, کیونکہ جب اور فاسلز ملے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ فاسلز اور یہ جو پل ڈاؤن کا فاسل تھا ان میں آپس میں کوئی مطابقت نہیں ہے. تو پھر سائنسدانوں نے اس کو دوبارہ چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ فراڈ تھا. تو ایسے فراڈ تو یعنی جہاں پہ انسان ہوں گے وہاں پہ کہیں نہ کہیں فراڈ ہوگا. لیکن اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں سائنس کا جو پورے کا پورا ایک کلچر ہے, ایک جو ایکو سسٹم ہے, اس میں فراڈ کتنا ہے, تو آپ کو علم ہوگا کہ سائنس میں فراڈ باقی فیلڈز کی نسبت بہت ہی کم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس ایک شفاف فیلڈ ہے, ہر چیز پبلش کی جاتی ہے, ڈیٹا پبلش کیا جاتا ہے, سورسز پبلش کیے جاتے ہیں. جس ٹیکنیک سے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا وہ طریقے پبلش کیے جاتے ہیں, جو ٹولز استعمال کیے ہیں وہ ٹولز پبلش کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ریپلیکیٹ کر سکیں. ریپلیکیشن سائنس کے پروسیس کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے, تاکہ دوسرے سائنسدان چیک کر سکیں. اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کی غلطیاں بھی پکڑتے ہیں, اور اگر کہیں فراڈ ہو تو وہ بھی اسی طرح پکڑا جاتا ہے. تو ایک فراڈ سے سائنسی نظریے پر سوال اٹھانا یہ ایک بائس سوچ ہے, یہ ایک سائنسی سوچ نہیں ہے. جی, امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اب میں گزارش کروں گا تیمور راجپوت صاحب کو کہ کائنڈلی آپ اپنے آپ کو سر انمیوٹ کیجئے اور اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم. میں نا ایک وعلیکم السلام جی, بہت ایک سوال پوچھیے. سمپل سا کویسچن ہے کہ انسان مطلب باقی سپیشیز جیسے ایولیوشن سے مطلب آگے بڑھتی ہوئی, کوئی مطلب پرندے بن گئے, کوئی میمل بن گئے, کوئی اسپیشیز بن گئی, لیکن انسانوں میں ایسی کیا ایولیوشن ہوئی تھی کہ ان کا دماغ مطلب انٹیلیجنٹ لائف بن گئی تھی؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ جی, بہت اچھا سوال ہے. اور یہ بھی اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ایولیوشن ہے تو باقی جانور ذہین کیوں نہیں ہو گئے, رائٹ؟ تو دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے جو ابھی ذکر کیا تھا دماغ کے اسٹرکچر کا, تو انسان کے دماغ کے اسٹرکچر اور باقی جو پرائمیٹس ہیں ان کے دماغ کے اسٹرکچر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. صرف ایک چیز کا فرق ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں نیورونز کی تعداد زیادہ ہے. اور نیورونز کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ انسان کے, اور خاص طور پہ فرنٹل کورٹیکس میں, یہ جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے نا, ذہانت, زیادہ تر ذہانت کی پروسیسنگ فرنٹل کورٹیکس میں ہوتی ہے. تو یہ ہمیں اب یہ بھی علم ہے کہ ایک جینیاتی میوٹیشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے, تو اگر آپ کورٹیکس کو اسٹڈی کریں نا, یہ جو کورٹیکس وہ کہتے ہیں جو لیئر جہاں پہ دماغ میں نیورونز ہوتے ہیں, رائٹ؟ تو دماغ کی جو سرفیس ہے اس کے بہت چھوٹی سی باریک سی لیئر ہوتی ہے جس پہ سارے نیورونز ہوتے ہیں, باقی سارے کنیکشنز ہوتے ہیں جس کو وائٹ میٹر کہتے ہیں, رائٹ؟ نیورون جو ہے گرے میٹر ہوتے ہیں. تو گرے میٹر میں مختلف حصوں میں نیورونز کی تہیں ہوتی ہیں, عام طور پہ 4 تہیں. اگر آپ جانور دیکھیں نا, میملز دیکھیں, ان میں 4 تہیں ہوتی ہیں اس کی, رائٹ؟ انسانوں کے اجداد میں, اور یہ صرف ہومو سیپین کی بات نہیں ہو رہی, یہ ہومینیڈس کی بات ہو رہی ہے, رائٹ؟ ابھی بات کی تھی میں نے, ہومینیڈس میں نیانڈرٹال رہتے ہیں,
डेनिसोवंस आते हैं, होमोफ्लोरेंसिस है एक मधुमशुदा, वो आते हैं, ये उन सब की बात हो रही है, राइट। एक म्यूटेशन इनमें हुई, हमें अब उस म्यूटेशन का भी पता है, जिसकी वजह से फ्रंटल कोर्टेक्स में जो लेयर है न्यूरॉन्स की, वो 4 के बजाय 6 हो गई, यानी एक लेयर दो बार बन गई, 6 लेयर्स बनने लगी, उससे न्यूरॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई। तो ये बुनियादी वजह थी जिससे हमारे जो अजदाद थे उनमें जहानत बाकी जानवरों की निस्बत कुछ ज्यादा हो गई, राइट। अब ये है कि फिर शायद आप ये सवाल करें कि फिर निएंडरथाल्स इतने कामयाब क्यों नहीं हुए, या डेनिसोवंस इतने कामयाब क्यों नहीं हुए, या आज से ये म्यूटेशन जो है ये तो करोड़ साल पहले हुई होगी, या कम से कम मिलियन साल पहले हुई होगी। तो इंसानी जहानत जो है वो तो पिछले 60-70 साल में नजर आती है, 60-70-100 साल में, सॉरी 60-70 हज़ार साल में नजर आती है, यानी जब से हमें ये पता चला है कि वो अफ्रीका से निकल के दुनिया फैली थी। तो बात कुछ यूं है कि सिर्फ न्यूरॉन्स का हो जाना, न्यूरॉन्स की मौजूदगी काफी नहीं होती। दिमाग इंसान के जिस्म का सबसे ज्यादा पावर हंग्री स्ट्रक्चर है, यानी इंसान के दिमाग का 1% से भी कम हिस्सा है दिमाग, सॉरी इंसानी जिस्म का 1% से भी कम हिस्सा है दिमाग, राइट, अगर आप वजन के हिसाब से देखें। लेकिन हम जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसका 20% हिस्सा दिमाग में सर्फ होता है, यानी दिमाग बहुत ज्यादा पावर हंग्री है, एनर्जी हंग्री है। दूसरे लफ्जों में दिमाग को काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी दरकार होती है। अब हमारी जो 110-20 लाख साल पहले के जो हमारे अजदाद थे, जब वो जंगलों में रहते थे, जब वो हंटर गैदरर्स थे, तो कभी इतनी खुराक ही नहीं मिलती थी कि उनकी जिस्मानी जरूरत पूरी हो सके। अक्सर फाकों में रहते थे, ये सिर्फ इंसानों की नहीं, बाकी जानवरों की भी, जंगली जानवर, उनमें ये एक फैक्ट है कि वो ज्यादातर फाकों में रहते हैं, उन्हें खुराक बहुत कम मिलती, कोई गारंटी नहीं होती, राइट। जैसे अगर आप हिरनों की बात करें तो मार्च से फरवरी मार्च में जो बाहर का मौसम होता है बहुत घास होती है, वो आराम से खाते हैं, लेकिन जैसी गर्मी आती है घास खुश्क हो जाती है, उसके बाद उन्हें खाने पीने को बहुत कम मिलता है, तो वो फिर कई माह बहुत कम ग़िज़ा पे गुजारा करते हैं। इसी तरह हमारे जो अजदाद थे वो बहुत कम ग़िज़ा पे गुजारा करते हैं, क्योंकि हंटर गैदरर्स थे, कहीं कोई पौधे नजर आ गए, फल नजर आ गए तो वो खा लिए, फिर वहां से आगे दरख्त पे फल खत्म हो गए तो आगे हो सकता है कि एक हफ्ते तक कोई फल वाला दरख्त ना मिले, और वो सिर्फ वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा के गुजारा करें, क्योंकि हमारे जो अजदाद थे 10-20-30 लाख साल पहले वो कीड़े मकोड़े भी खाते थे, राइट। तो उनके जिस्म को कभी इतनी खुराक नहीं मिलती थी कि दिमाग को वो एनर्जी मिल सके जिससे दिमाग में जो प्रोसेसिंग है वो हो सके, राइट। सिर्फ लेयर्स का बन जाना काफी नहीं है, उसको एनर्जी, मुसलसल एनर्जी चाहिए। तो ये जब से काश्तकारी शुरू हुई, जब से हमारे अजदाद नोमैडिक जो लाइफस्टाइल था, यानी खाना बदोश लाइफस्टाइल था, उसको छोड़ के बस्तियों में, छोटी छोटी बस्तियों में, गांव शहर तो नहीं थे, छोटी छोटी बस्तियां जहाँ पे वो काश्तकारी करने लगे, तब उनको जाके ये माहौल मिला जहां उन्हें खुराक इतनी मिल सकती थी कि ब्रेन जो पावर हंग्री है उसको पूरी एनर्जी मिल सके। तो अचानक फिर हमें नजर आता है कि उस जमाने में इंटेलिजेंस बढ़नी शुरू हुई। उससे पहले इंटेलिजेंस हमारे अजदाद में भी इतनी नहीं थी। तो ये एक, जिस तरह से चीता है, उसमें उसके अजदाद में एक ऐसी म्यूटेशन हुई जिससे उसकी नज़र बहुत तेज़ हो गई, या उसकी रफ्तार बहुत तेज़ हो गई, राइट। हिरन, उनके अजदाद में ऐसी म्यूटेशन हुई जिनसे वो एक, मैं अगर आपको मिसाल दूं एवोल्यूशन कैसे काम करता है, इनके अजदाद में एक म्यूटेशन हुई जिसमें यह हुआ कि मादा की ओवरी से बैजा उस वक्त खारिज होने लगा जब वो शदीद भूख प्यास की हालत में हो, राइट। अब ये देखने में बहुत ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि अगली नस्ल पैदा करने के लिए बैसा उस वक्त खारिज हो जब वो जानवर भूखा प्यासा है। तो जब मेट करते हैं वो सितंबर अक्टूबर में करते हैं, और फिर उनकी तकरीबन 3-4 माह की उसकी प्रेगनेंसी होती है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि बच्चा जनवरी फरवरी में पैदा होता है, जब बाहर आने लगती है और घास बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो उससे क्या हुआ कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त माँ को बहुत घास मिलती है और वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा दूध बनाती है, उससे बच्चा बहुत जल्द बड़ा होता है।
تو ایوولوشن اس طرح سے کام کرتا ہے کہ یہ میوٹیشنز اتفاقی ہوتی ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ماحول ایسا بنتا ہے کہ کچھ میوٹیشن فائدہ مند ہوتی ہیں. تو یہ ایک انسانوں کے اجداد میں ایک میوٹیشن تھی جس سے ہمارے دماغ میں نیورونز کی تعداد بڑھ گئی، اور پھر اس کا فائدہ اس وقت ہوا جب نیوٹریشن زیادہ ہمیں ملنے لگی، جب ہمارے اجداد نے شکار کرنا سیکھ لیا اور انہیں پروٹین ملنے لگی. دماغ کے لیے پروٹین بہت ضروری ہوتی ہے، رائٹ؟ جب تک ہمارے اجداد نے شکار کرنا نہیں سیکھا تھا تب تک ہمارے اجداد کی ذہانت کم تھی، اگرچہ 6 لیئر اس وقت بھی بن چکی تھی. تو یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو کئی انڈیپینڈنٹ طریقوں سے ویریفائی ہوئے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ انسانوں میں ذہانت بڑھی. لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ جو سمندری میملز ہیں ان میں مختلف وجوہات کی بنا پر، جو انسانوں کے جو ہسٹری سے بہت مختلف ہیں، ان میں بھی بہت زیادہ ذہانت ہے. وہ اب ٹولز کا استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے ہاتھ ایسے ڈیکسٹیریٹی نہیں ہے جیسے انسانوں، کیونکہ ان کو تیرنا تھا، رائٹ؟ تو ان کے جسم کا اسٹرکچر ایسا بنا کہ ان کے جسم میں ہاتھ پاؤں کی ڈیکسٹیریٹی کم ہوتی گئی، لیکن اسی طرح ان کی ذہانت بڑھتی گئی. اور آپ کو پتا ہے کہ ڈولفنس اور ویلز انسانوں کے بعد شاید دنیا کے ذہین ترین جانور سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان میں وہ بنیادی چیز جو فرنٹل کورٹیکس ہے وہ پہلے سے موجود تھی. اس میں ایسی میوٹیشن ہوئی جس سے فرنٹل کورٹیکس ان کی بہت بڑھ گئی. ڈولفن کی فرنٹل کورٹیکس جو ہے وہ اگر آپ وزن کے حساب سے دیکھیں تو انسان سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں، لیکن اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ آپسی کمیونیکیشن کے لیے اور پلاننگ کے لیے، جو وہ ایک دوسرے سے پلان کر کے شکار کرتی ہیں، اس پہ ہے. وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کر سکتی اس لیے کہ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں. تو یہ مختلف جانوروں پر، مختلف انواع پر مختلف تبدیلیاں ہوئی، اور پھر ان کے پہ سلیکشن پریشر مختلف تھے، اس کا نتیجہ مختلف ہوا. تو ہم ذہین اس لیے ہیں کہ ہمارے اجداد میں ایسی میوٹیشن ہوئی جس سے برین میں، فرنٹل کورٹیکس میں نیورونز کی تعداد بڑھ گئی. سر نے بہت بہترین انداز میں آپ کو جواب دیا. اگلا جو سوال ہے وہ ہمارا ہے گرین شہین صاحب کا. جی کائنڈلی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے اور سوال پوچھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، ابھی آپ نے یہ لکھا ہے کہ ڈفرینٹ اینیملز میں کافی سملیرٹیز ہیں ان کے آرگنز میں، ان کے بونس کے اندر. تو میرا مین کویشچن یہ ہے، تو کیا اس میں اس کی مین جو وجہ ہے، ریزن ہے کہ میسٹرل سائیکل جو ہے وہ صرف چمپینزی گروپ میں، چمپینزی فیملی اور ہیومنز میں ہی ایک دم سے، یہ ایولیوشن کی وجہ سے، یہ کیا ریزن ہے اس کے؟ باقی دیکھیں پچھلے جتنے بھی ملینز آف اینیملز ہیں ان میں یہ نہیں ہے. بہت عمدہ سوال ہے یہ ایک پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اور کسی جانور میں نہیں ہوتا. یہ اور کئی میملز ہیں ان میں ہوتا ہے مینسٹرل سائیکل. اب مینسٹرل سائیکل ہوتا کیا ہے کہ ہر ماہ جو اڈلٹ فیمیل ہے، وہ انسان ہو یا اور میملز ہوں، رائٹ، ان میں یہ صرف پلیسنٹل کی بات ہو رہی، یعنی میملز کی بات ہو رہی جن میں پلیسنٹا ہوتا ہے، جن میں بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے. انڈے دینے والے جانوروں کی بات نہیں ہو رہی. تو جب بیضہ ریلیز ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہارمونس تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان ہارمونس کی وجہ سے یوٹرس میں لائننگ زیادہ بننے لگتی ہے. لائننگ کا مطلب ہے کہ اس میں یوٹرس کی جو اندرونی سطح ہے اس کے اوپر ٹیشو بننے لگتے ہیں، اور وہ ٹیشو وہ ہوتے ہیں جہاں پہ پھر اگر بیضہ فرٹیلائز ہو جائے تو فرٹیلائز بیضہ ہے وہ جب بلاسٹوسسٹ بنتا ہے، یعنی وہ تقسیم ہو کے جب وہ ایک چھوٹا سا چند 100 خلیوں کا ایک سمجھ لیجیے بال بن جاتا ہے، مائکروسکوپک بال بن جاتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے امپلانٹ ہوتا ہے، رائٹ. اب یہ جو پروسیس ہے یہ ہارمونس کے تحت ہوتا ہے. اگر بیضہ خارج ہونے کے بعد امپلانٹیشن نہ ہو تو ہارمونس پھر تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے لائننگ یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ تمام میملز میں ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اکثر میملز میں یہ لائننگ اندرونی طور پر ہی جسم میں ایبزارب ہو جاتی ہے. انسانوں میں اور کچھ اور میملز ایسے ہیں، گنتی کے چند ہیں، 1-2 چمگادڑ کی انواع ہیں، ایک خرگوش ہے، شاید 1-2 اور ہیں، مجھے یاد نہیں کہ ایگزیکٹلی کیا ہے. وہ انواع ایسی ہیں جن میں یہ لائننگ جسم میں جذب نہیں ہوتی، یہ خارج ہو جاتی ہے، رائٹ. تو یہ جو میکنزم ہے کہ اوولوشن کہتے ہیں جب بیضہ خارج ہوتا ہے اووری سے، رائٹ. یہ ایوولوشن نہیں ہے، اوولوشن ہے جب بیضہ خارج ہوتا ہے. بیضہ خارج ہونے سے پہلے یوٹرس میں لائننگ کا موٹا ہو جانا یہ ہر میمل میں ہوتا ہے، صرف انسانوں میں نہیں ہوتا. لیکن اکثر انسانوں میں اگر فرٹیلائزیشن نہ ہو تو یہ لائننگ
اندر جذب ہو جاتی ہے. انسانوں میں یہ تبدیلی آئی کہ لائننگ جذب نہیں ہوتی, یہ جسم سے خارج ہو جاتی ہے, یعنی ایسے ہارمونز بنتے ہیں جن سے وہ لائننگ ڈیٹیچ ہو جاتی ہے. اور یہ ایگزیکٹلی ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, لیکن کچھ تھیوریز ہیں کہ یہ کچھ کہتے ہیں انسانوں کی موبلٹی کی وجہ سے ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک ویزیبل سائن ہے کہ مادہ اب تو ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں, لیکن ہمارے اجداد لاکھوں سال پہلے جب جنگل میں رہتے تھے تو کپڑے نہیں پہنتے تھے, رائٹ. تو یہ ہومینیڈس کی بات ہو رہی ہے. تمام ہومینیڈس میں لوگوں ماہرین کا اندازہ ہے کہ اسی طرح سے مینسٹروریشن ہوتی تھی جس طرح سے انسانوں میں ہوتی ہے. تو ایسا ایگزیکٹلی کیوں ہوتا ہے انسان میں, اس کی وجہ پتہ نہیں, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ لائننگ کے موٹا ہونے کا عمل ہر میمل میں ہوتا ہے, مادہ میں, اور اس کے بعد لائننگ کا ختم ہو جانا بھی ہر مادہ میں ہوتا ہے. کچھ اسپیشیز ہیں انسان کے بشمول انسان کے جن میں یہ لائننگ جسم میں جذب نہیں ہوتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ فرق ہے, لیکن یہ بیسک اسٹرکچر جو ہے یہ تمام میملز میں ایک سا ہے. اگلا ہمارا سوال ہے حافظ محمد صاحب کا. جی سر, کائنڈلی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور سوال پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ایوولوشن ہو رہی تھی تو ایسا کیا ہوا کہ جو سانپ ہیں ان کے اندر زہر آیا یا ایسے زہر ڈیولپ ہوا, ایسا کیوں ہوا؟ جی بہت عمدہ سوال ہے یہ سوال جو ہے یہ ایک عرصے تک ماہرین کو پریشان کیے رکھا تھا. اور اس میں صرف زہر کی بات نہیں ہے, سانپ کے ایوولوشن میں یہ بھی ہے کہ سانپ کی ٹانگیں کیوں نہیں ہیں, رائٹ. باقی جانوروں کی ٹانگیں ہیں اور سانپ اتنا لمبا کیوں ہوتا ہے, باقی جانور اتنے لمبے نہیں ہوتے. تو یہ سب, تو پہلے اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں. آپ نے جو جملہ کہا تھا معذرت کے ساتھ, وہ جملہ میں درست کرنا چاہوں گا کہ جب ایوولوشن ہوا تھا, یہ غلط ترکیب ہے. ایوولوشن ماضی میں نہیں ہوا تھا, ایوولوشن ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے, رائٹ. ایوولوشن ایسا نہیں ہے جو ماضی میں ہوا اب ختم ہو گیا, ایوولوشن آج بھی چل رہا ہے. ایوولوشن ایک فطری پروسیس ہے اور فطری پروسیسز کبھی ختم نہیں ہوتے. فرق صرف یہ ہے کہ ایوولوشن کا جو ٹائم سکیل ہے وہ لاکھوں کروڑوں سالوں پہ ہوتا ہے. اصل جو بات ہے وہ لاکھوں کروڑ سال میں نہیں, لاکھوں نسلوں پہ ہوتا ہے. یعنی جو اگلی نسل ہم پیدا کرتے ہیں تو ہر نسل میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے والدین سے مختلف ہوتے ہیں, شکل تھوڑا, عادتیں تھوڑی فرق. تو یہ فرق جو ہے اگر آپ جائیں 10,000 20,000 1,00,000 نسلوں پہ, پشتوں پہ, تو یہ فرق بڑا ہو کے بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے. یعنی ہم اپنے والدین سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں. اپنے اگر پردادا کی بات کریں تو ان سے وہ مشابہت تھوڑی کم ہوگی, اس سے اور پیچھے جائیں تو مشابہت اور کم ہو جائے, اور پیچھے جاتے جائیں تو مشابہت کم ہوتی جاتی ہے, رائٹ. تو یہ مشابہت کی کمی لاکھوں پشتوں میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہیں. تو یہ ارتقاء کا پروسیس ہمیشہ چلتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں ہوا اب نہیں ہو رہا. آپ نے جو سانپ کی بات کی تو اس میں 2 پہلوؤں میں بات کروں گا, ایک تو زہر اور دوسرا سانپ لمبا کیوں ہے. تو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ تمام جو ورٹیبریٹس ہیں, سانپ بھی ورٹیبریٹ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, ان میں پسلیاں ہوتی ہیں, رائٹ. سانپ ایک ایسا جانور ہے جس میں پسلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے یہ بہت لمبا ہے. اور پسلیوں کی تعداد کچھ جینز ہیں ان کی ڈپلیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ جین ڈپلیکیٹ اگر ہو جائیں تو پسلیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. یہ جین اگر ان کی تعداد کم ہو جائے تو پسلیوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے. تو سانپ اور کچھ ایسی چھپکلیاں بھی ہیں, ایسی چھپکلیوں کی کچھ انواع ایسی ہیں جو آپ دیکھیں بہت لمبی ہوتی ہیں. ان میں پسلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, اس لیے کہ ان میں ایسی میوٹیشن ہوئی جس میں وہ جین بہت زیادہ دفعہ ڈپلیکیٹ ہو گیا, اس وجہ سے سانپ بہت لمبے ہوتے ہیں. اور سانپ کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں, وہ بھی یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں ہیں لیکن اندرونی طور پر ہیں, یعنی وہ بیرونی ہاتھ پاؤں ختم ہو گئے لیکن ان کی ہڈیوں کی باقیات ابھی تک ہیں. آپ اگر سانپ کا ڈھانچہ دیکھیں تو اس میں آپ ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں دیکھ سکتے ہیں, وہ ابھی تک ہیں. تو یہ تو سانپ کے لمبوترا ہونے کی بات ہوگی کہ وہ میوٹیشن کی وجہ سے ایسا ہوا. زہر سر جو یہ ہوا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ سانپ جو ہے اس کے ابھی تک ٹریسز ہیں پاؤں وغیرہ کی ہڈیوں کے, تو یہ کیوں نہیں ختم ہوا جب سانپ کرال بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ؟ جی, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایوولوشن میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, کوئی جسے انگریز میں فورتھ تھاٹ کہتے ہیں نا, کہ پہلے سوچ کے ہمیں یہ کرنا چاہیے, ایسا کچھ نہیں ہوتا, رائٹ. میوٹیشن ہوتی ہے رینڈم, اور پھر ماحول
से मुताबिकत कम होती है या बढ़ती है उस म्यूटेशन की वजह से, अगर वो माहौल से मुताबिकत बढ़ रही है तो वो म्यूटेशन अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाएगी। अगर माहौल से मुताबिकत कम हो रही है तो वो फिर अगली नस्ल में मुंतकिल होने का इम्कान कम हो जाएगा, राइट। अगर म्यूटेशन ऐसी है कि माहौल से मुताबिकत तब्दील ही नहीं हो रही, यानी वो इसे न्यूट्रल म्यूटेशन कहते हैं, राइट, तो वो फिर कोई वजह नहीं है कि वो उसके जीन से निकल जाए, राइट। तो सांप के अजदाद बिलों में रहते थे, यानी जमीन के नीचे सुराख बना के, जिसे बिल कहते हैं, राइट, बिलों में रहते थे, गार बना के। और गार बना के रहने में हाथ पांव इतने जरूरी नहीं होते, इसलिए कि उनको चारों तरफ से टच करके एक जो लेवरेज जिसे कहते हैं आगे बढ़ने का जो तरीका है, राइट, जिसे आप इंसानों को भी देखें तो हम खुदा न खास्ता अगर या कोई गेम है जिसमें हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं तो हम हाथ पांव के बगैर भी हम सिर्फ अपने आप को घसीट कर भी आगे जा सकते हैं, राइट। इसी तरह सांप के अजदाद भी ये जो बिल थे तंग होते थे, उनमें घसीट कर अपने आप को आगे लेकर जाते थे। तो उसमें हाथ और पांव फायदामंद कम थे, हिंड्रेंस ज्यादा थी, यानी मुजाहमत ज्यादा होती थी इनसे। तो उस वजह से उनकी म्यूटेशंस की वजह से अगर कोई ऐसी तब्दीलियां हुई जिसमें किसी सांप के हाथ नहीं बने, राइट, तो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको बल्कि फायदा हुआ कि अब वो ज्यादा आसानी से चल फिर सकता था। तो इस वजह से वो तब्दीलियां अगली नस्ल में मुंतकिल हुई। लेकिन अंदरूनी हड्डी जो है अब वो उनको चलने फिरने में कोई हिंड्रेंस नहीं देती, मुजाहमत नहीं बनती। तो अब कोई वजह नहीं है कि अंदरूनी हड्डी की वजह से उसको कोई माहौल से मुताबिकत कम हो। अब ना वो मुताबिकत बढ़ रही है ना वो कम हो रही है, इसलिए वो हड्डी के खिलाफ कोई सिलेक्शन प्रेशर नहीं है, इसलिए वो हड्डी अभी तक खत्म नहीं हुई। इसी तरह मैंने वेल की बात की थी, राइट। वेल के वाकयात खुशकी पर थे। वेल अब समुद्र में है, उनके हाथ पांव नहीं है, खासतौर पे पाँव की हड्डियां जो हैं वो तो नजर ही नहीं आती, हाथ की जो हड्डियां वो तो फ्लिपर बन गए उनके। उनके जिस्म के अंदर टांगों की हड्डी अभी तक मौजूद है। आप अगर ऑनलाइन सर्च करें, वेल का ढांचा देखें, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ वेल या द बोन्स ऑफ वेल देखें, बहुत से जो अजायब घर हैं, म्यूजियम्स हैं, इंटरनेशनल म्यूजियम्स, उनमें पूरे पूरे वेल के ढांचे उन्होंने म्यूजियम में लगाए हुए हैं। और उसमें आप देखेंगे कि आपको उस ढांचे में पाँव की हड्डियां, टांगों की हड्डियां नजर आएंगी, बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिस्म के अंदर ही रहती हैं, जिस्म में बाहर नहीं आती। तो ये चीजें हैं जो अगर किसी स्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं हो रहा लेकिन उसका नुकसान भी नहीं हो रहा, तो फिर कोई मनफी सिलेक्शन प्रेशर नहीं होता जो उसे निकाल सके, राइट। तो वो खैर आपका जो ओरिजिनल सवाल था उसका तरफ मैं जा रहा था कि जहर कैसे बना। जहर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें वही प्रोटीन्स होती हैं जो इंसान के थूक में होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां हैं और उन तब्दीलियों की वजह से वो अब केमिकल ऐसे बन गए हैं। अच्छा, आपको पता है ना कि जब हम खाते हैं तो हाजमे का अमल हमारे चबाने के दौरान ही शुरू हो जाता है। हमारी थूक में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो गोश्त को तोड़ फोड़ देते हैं, तो हाजमे का अमल जो है खाने के दौरान ही शुरू हो जाता है। तो थूक में भी वो एंजाइम हैं, हमारे इंसान की थूक में, जो जिस्म को या टिश्यू को तोड़ते फोड़ते हैं। सांप में क्या हुआ कि इन्हीं केमिकल्स में थोड़ी सी और तब्दीली हुई और वो बहुत ज्यादा पोटेंट हो गए कि वो जिस्म में जाते हैं तो वो टिश्यू को तोड़ फोड़ देते हैं। या वो कुछ सांप ऐसे होते हैं जो काटते हैं तो उनके जहर से खून में गुठलियां बनने लगती हैं, ये खून जमने लगता है। अब आपको पता है कि खून अगर किसी को चोट लग जाए खुदा ना खास्ता तो खून निकलता है, तो फिर वो खून थोड़ी देर में जम जाता है, राइट। ऑक्सीजन लगती है खून को तो खून जमने लगता है, ये फ्री ऑक्सीजन, हवा की ऑक्सीजन जो है। सांप के जहर में ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो उस जमने का जो अमल है उसको जिस्म के अंदर ही फाल कर देते हैं और वो जिस्म के अंदर खून जमने लगता है। कुछ सांप के जहर में टॉक्सिन ऐसे होते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी फायरिंग को रोक देते हैं, तो उससे फिर इंसान के हाथ पांव शल हो जाते हैं। हाथ पांव को शल होना तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन हमारा जो दिल है, दिल के मसल भी हरकत करना बंद कर देते हैं, दिल धड़कना बंद कर देता है, तो उससे फिर मौत वाक़या हो जाती है, राइट। ये चीजें जो हैं ये
اب ہمیں پتہ ہے کہ سانپ کے ڈی این اے میں کہاں کہاں ایسی میوٹیشنز ہوئیں جس کی وجہ سے سانپ کی تھوک، یہ جو زہر ہے بیسیکلی تھوک ہے، یعنی سلائیوا گلینڈ جو انسانوں میں ہوتے ہیں باقی جانوروں میں ہوتے ہیں، وہی سلائیوا گلینڈ ہیں جو سانپ میں زہر بناتے ہیں. تو یہ یعنی آپ نے اگر کبھی پڑھا ہو، ایک ابھی تحقیق یہ بھی آئی ہے کہ انسان کی جو تھوک ہے وہ زہر کے بہت نزدیک ہے. یعنی ہمارے تھوڑی سی اگر ڈی این اے میں تھوڑی سی اور میوٹیشن ہو اور تھوک میں جو کیمیکل ہیں وہ تھوڑے سے اور تبدیل ہو جائیں تو انسانی تھوک جو ہے وہ زہر بن سکتی ہے. تو زہر کا ارتقاء جو ہے وہ سلائیوا گلینڈ سے ہی ہوا ہے. جی ادھر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو حافظ محمد صاحب ہیں یہ یہاں پر سب سے ینگ ہے، مطلب کہ یہ 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ماشاء اللہ اتنے کیوریس ہیں. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے اتنا اچھا سوال پوچھا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے ہمیں چیٹ میں سوال پوچھے، میں آپ کے لیے ان کو پڑھ دیتا ہوں. جی. پہلا سوال ہے پاکیزہ حنیف صاحبہ کا کہ ڈیپ ہومولوجی سے ہم کامن جینیٹک سوئچ تو پروف کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ بھی کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ کامن انسیسٹر کے پاس ایکچوئل فنکشنل آئی تھی یا صرف ایک بیسک لائٹ سینسٹیو سیل؟ یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے، اس لیے کہ یہ تو جو سائٹ ہے یا یعنی نظر ہے یا دیکھنے کا جو پروسیس ہے اس کے ارتقاء کا ایک پورا، یعنی یہ ایسا ٹاپک ہے جس میں پورے کتابوں کے سیٹ، یعنی یہ کتاب نہیں، کتابوں کے سیٹ لکھے گئے ہیں. اس قدر پیچیدہ اور اس قدر گہرا موضوع ہے اور اس پر اس قدر تحقیق موجود ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، آپسن جو پروٹین ہماری آنکھوں میں جس کی وجہ سے ہم لائٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، یہ سنگل سیلڈ اینیملز میں بھی پائی جاتی ہے. اب سنگل سیل اینیملز میں آپشن کیا کام کرتی ہے؟ سنگل سیل اینیملز بھی دن اور رات میں فرق کر سکتے ہیں، یعنی روشنی ہے یا نہیں اس میں فرق کر سکتے ہیں. اور دن کے وقت وہ اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، رات کے وقت وہ اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں. یعنی جن دن اس علاقے میں ہوتے ہیں جہاں پہ خوراک زیادہ ہوتی ہے، رات کے وقت وہ وہاں چلے جاتے ہیں جہاں خطرہ کم ہوتا ہے، رائٹ. تو یہ دن اور رات کا جو فرق ہے یہ سنگل سیلڈ اینیملز میں بھی موجود ہے. اس کے بعد ہمیں یہ علم ہے کہ بہت ہی قدیم جانور، جیسے میں نے بھی ذکر کیا تھا، بہت قدیم جانور جو ہمیں یعنی 60-70 کروڑ سال پہلے ملتے ہیں، ان میں بھی ان کے اتنے زیادہ فاسلز موجود ہیں کہ وہ دنیا میں ہر جگہ ملتے ہیں. اور انہیں ٹرائلوبائٹس کہتے ہیں. ابھی اگر آپ کے پاس موقع کبھی ملے تو ٹرائلوبائٹس کو پہ سرچ کیجیے گا یا اے آئی سے پوچھے گا ٹرائلوبائٹس کیا ہوتے ہیں. 60-70 کروڑ سال پہلے ان میں بھی آنکھیں موجود ہیں. اور اب ہمارے پاس ایسے مولیکولر ٹولز موجود ہیں. اگلے سیشن میں ہم یہ مولیکولر ایوولوشن کی بات کریں گے اور اس میں یہ آپشنز کا ذکر بھی آئے گا کہ ہم ٹرائلوبائٹس کے فاسلز میں آپشنز کے مولیکول کی باقیات دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے آنکھوں میں بھی آپشنز پروٹین بنتی تھیں اور اس کی وجہ سے وہ دیکھتے تھے. ایسے جانور موجود ہیں، ہیک فش ہم کہتے ہیں انہیں، جو آج بھی موجود ہیں اور ان کی آنکھ بہت ہی کم روشنی ڈیٹیکٹ کرتی ہے. یعنی بالکل ایک پیچ ہے جو آئی سینسیٹیو پیچ کہتے ہیں اسے. جگہ وہی ہے جو آنکھوں کی ہوتی ہے، یعنی کھوپڑی کے پاس، لیکن ہیک فش بھی صرف دن اور رات میں تفریق کر سکتی ہے. اس میں وہ نہیں ہے، کوئی لینز نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، سینس آف ڈائریکشن ڈیٹیکٹ کرنے کا کوئی میکانزم نہیں ہے. تو آنکھ کے ارتقاء کے جو تمام سٹیجز ہیں، اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو میں مستقبل میں ایک لیکچر پورے کا پورا آنکھ کے ارتقاء پہ بنا سکتا ہوں، جس میں ہم تفصیل سے یہ دیکھیں گے کہ آنکھ کا ارتقاء کیسے ہوا. اور شروع میں صرف ایک پیچ تھا جس میں لائٹ اور ڈارک کی ڈفرینسیشن ہوتی تھی. پھر وہ کچھ جانوروں میں پیچ جو تھا وہ ایک کپ کی صورت بن گیا. اب کپ سے کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک سمت سے لائٹ آ رہی ہے تو وہ زیادہ آئے گی، دوسرے سمت سے آ رہی ہے تو کم آئے گی، تو ڈائریکشنالٹی تھوڑی سی آ گئی. پھر وہ کپ جو تھا وہ اس کا منہ پر سے بند ہونے لگا، بیچ میں سوراخ رہ گیا، تو اب یہ ایک پن ہول کیمرہ بن گیا. پن ہول کیمرہ میں اب امیج بننے لگا. پھر ایک میوکس لیئر اس کے اوپر بننے لگی، میوکس جو مطلب سافٹ جو لیئر ہوتی ہے اسے میوکس کہتے ہیں.
उससे फिर क्या हुआ कि उस लेयर की जो उर्दू में क्या कहते हैं, उसको इनताफ कहते हैं, यानी बेंड होने की जो काबिलियत है वो मुख्तलिफ थी, राइट। तो उस तरह से एक बहुत प्रिमिटिव लेंस बनने लगे। फिर जिन जानवरों में ये लेंस ज़्यादा बेहतर थे, वो ज़ाहिर है ज़्यादा बेहतर देख सकते थे दुश्मनों से, या जो खूंखार जानवर थे उनसे ज़्यादा बच सकते थे। तो इस तरह से लेंस की क्वालिटी बेहतर होने लगी। तो ये एक पूरा इत्तिकाई प्रोसेस है, और इसका हर स्टेज पे जो आँख की का स्ट्रक्चर था वो आज भी प्रिमिटिव जानवरों में मौजूद है, राइट। जो सादा जानवर हैं, प्रिमिटिव तो नहीं कहना चाहिए इसलिए कि वो आज मौजूद हैं, लेकिन जो सादा जानवर हैं उनमें वो तमाम की तमाम स्टेजेस मौजूद हैं। यानी एक जो मैंने ये बात की थी पिन होल कैमरा की, ऐसे जानवर आज भी मौजूद हैं जिनमें पिन होल कैमरा है, सिर्फ उसमें कोई एम्पलीफिकेशन नहीं है, उसमें लेंस नहीं है, उसमें फोकस करने की काबिलियत नहीं है। फिर डायरेक्शनैलिटी, ऐसे जानवर हैं जिनमें आँख घूम सकती है जैसे इंसान घूम सकता है, उसके में मसल्स का इर्तिका कैसे हुआ, ये सब स्टेजेस जो हैं ये फॉसिल्स में तो डिटेक्ट नहीं कर सकते इसलिए कि आँख सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ये फॉसिलाइज नहीं होता, लेकिन जिंदा जानवरों में हम वो तमाम स्टेजेस देख सकते हैं। तो ये बहुत तफसील से डॉक्यूमेंटेड है कि आँख का इर्तिका कैसे हुआ। जी, और इनका दूसरा सवाल है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में इतने सारे बॉडी प्लान्स अचानक क्यों आए? ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन की थ्योरी से कॉन्फ्लिक्ट करता है या नहीं? बिल्कुल नहीं करता जी। मैंने अभी जिक्र किया था जब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का जिक्र किया था कि एक्सप्लोजन सिर्फ एक नाम ऐसे दिया गया है, ये एक वाकया नहीं था, ये एक एरा था। एरा का मतलब एक उर्दू में क्या कहते हैं इसे, दौर। ये दौर जो है वो कम से कम 15 से 20 मिलियन साल का है। और उस जमाने में जब जानवर छोटे थे और अगली नस्ल बहुत जल्द पैदा की, जैसे मच्छर है, मक्खी है, ये 1-2 दिन में 3 दिन में जवान होकर अगली नस्ल भी पैदा कर देते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं, यानी हशरात में कुछ ऐसे हैं जो जिनकी सारी जिंदगी 24 घंटे होती है, उसी 24 घंटे में वो बड़े भी होते हैं, जिनसी मिलाप भी करते हैं, उसके बाद अंडे भी देते हैं, उसके बाद मर भी जाते हैं, राइट। अब ये देखें कि 20 मिलियन साल के दौर में इस किस्म के जानवर जो उनकी कितनी नस्लें पैदा हुई होंगी, और उन नस्लों में इर्तिका का इम्कान किस कदर ज्यादा है, जबकि उस जमाने में प्रेडिटर्स भी कम थे, और हवा में ये जो कुर्रा हवाई है इसमें ऑक्सीजन भी कम थी। ऑक्सीजन तो खैर थी, लेकिन यह है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो ओजोन लेयर होती है वो कम थी, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज उस जमाने में ज्यादा होती थी। और अल्ट्रावायलेट रेज आपको पता है कि वो डीएनए के मॉलिक्यूल को तोड़ती हैं, या किसी भी पेचीदा मॉलिक्यूल को तोड़ सकती हैं, इसलिए कि उनकी एनर्जी जो है बॉन्ड एनर्जी के आसपास होती है, इसलिए वो आपस में तामुल करके वो बॉन्ड को तोड़ सकती हैं। तो उसका मतलब क्या है कि उस जमाने में म्यूटेशंस का रेट भी ज्यादा था। फिर यह है कि उस जमाने में जमीन एक आइस एज से निकल रही थी, जिसका मतलब है कि अरबों खरबों खरबों टन पानी जो बर्फ की सूरत में ग्लेशियर्स में और बर्फ के मीलों ऊंचे जखायर में इकट्ठा था, वो पिघल कर, वो आइसेस खत्म हो रही थी तो पिघल कर वापस समुद्र में जा रहा था, और वो जब पिघल के नदी नालों और दरियाओं से गुजर के जाता है तो वो चट्टानों को काटता हुआ जाता है और वो मिनरल साथ लेके जाता है। तो इसलिए मिनरल्स की मिकदार समुद्र में बढ़ रही थी, और वही मिनरल्स हैं जो अभी हैं, हम नजर आता है कि जैसे हड्डियां हैं तो कैल्शियम से बनती हैं, वो मिनरल है, राइट। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जो बुनियादी हमारे केमिकल तामुलात हैं और जो बुनियादी जो जिस्मानी स्ट्रक्चर बनते हैं, आयरन, राइट, ये सब के सब समंदर में बढ़ रहे थे, और उसी वजह से उस जमाने में ये जो मिनरल से इस बात का के इम्कान मुमकिन हुआ, यानी इस बात की इम्कान बढ़ा कि जानवरों में हार्ड बॉडीज, हार्ड स्ट्रक्चर्स बनने लगे, राइट। तो ये एक वाकया नहीं है जो यकायक हो गया, ये एक पूरा दौर है। और आमतौर पर क्रिएशन हजरात ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये अचानक नजर आ गया, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि अब हमारे पास प्री कैम्ब्रियन फॉसिल्स भी मिल गए हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, हमें ज़्यादा फॉसिल्स मिलने लगे हैं जो पहले हम दरियाफ्त नहीं कर पाते थे, तो प्री कैम्ब्रियन दौर में ही हमें बायलैटरलिज्म नजर आने लगा है, राइट।
बॉडी स्ट्रक्चर नजर आने लगे, अगरचे वो प्रिजर्व नहीं होते थे, उनके सिर्फ इंप्रेशन बनते थे, लेकिन उन इंप्रेशन में हम बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो वो प्री कैम्ब्रियन एरा भी इंक्लूड करें तो हम 40-50 मिलियन साल की बात कर रहे हैं, ये छोटा अरसा नहीं है। तो ये यकायक नहीं बने थे, ये एक इर्तिका हुआ था, लेकिन चूंकि माहौल तब्दील हो रहा था, जैसे मैंने अर्ज किया कि एक तो माहौल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तब्दील हो रहा था, यानी आइस एज खत्म हो रही थी, उस वजह से मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी, और दूसरे जब इससे पहले जो जानदार थे वो फिल्टर फीडर्स थे, वो सिर्फ इर्द गिर्द जो छोटे मोटे केमिकल मॉलिक्यूल मिलते थे उनको हासिल करते थे। जब बॉडीज बड़ी होने लगी तो बॉडीज एक दूसरे को खाने लगी, और इससे फिर वो एक जिसे आर्म्स रेस कहते हैं कि जबड़ों का इर्तिका हुआ। तो अब जबड़े वाली फिश जो है वो दूसरी जो मछली है उसको सालम खाने लगी। उससे पहले जो जेलीफिश है उसमें एक ही ट्यूब है जिसका एक ही ओपनिंग है, उसी से ग़िज़ा अंदर जाती है, उसी से जो उसके वो है फुजला वो निकलता है। तो वो ऐसा नहीं कर सकती ये एक मसलसल खाती रहे, उसको रोकना पड़ता है और फिर वो फजला निकालना पड़ता है। और चूंकि वो रास्ता एक ही रास्ता है, वो कोई बड़ा जानवर नहीं खा सकती, इसलिए कि वो रास्ता बंद हो जाएगा, फिर फजला नहीं निकलेगा, राइट। तो ये लिमिटेशंस थी। फिर जब इर्तिका हुआ एक बायलैटरलिज्म का, जिसमें एक ट्यूब बनी जिसका एक सिरे पे ग़िज़ा जाती थी, दूसरे सिरे पे ग़िज़ा खारिज होती थी, तो उससे इम्कान हुआ कि आप बड़ी चीज़ें, यानी उस ज़माने के जो जानवर थे वो बड़ी चीज़ें खा सकें, राइट। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो इट इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये अचानक हो गया और ये इर्तिका के नज़रिए की नफ़ी करता है। इर्तिका के नज़रिए का सबसे बड़ा सबूत ही वो रैपिड डेवलपमेंट है जो हमें कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में और उसके बाद नजर आती है। The question is the number of neuron in the brain of all humans the same or does it differ from one to another? बहुत उम्दा सवाल है ये, और ये एक जो बुनियादी एक तस्वुर है कि कोई दो इंसान कभी एक जैसे नहीं होते। जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं है, उसी तरह अब हम ये जानते हैं कि हर बॉडी स्ट्रक्चर हर शख्स का यूनिक होता है, राइट। आपने शायद पढ़ा होगा कि आयरिस का स्ट्रक्चर हमारा यूनिक होता है, कि हर शख्स का आयरिस स्ट्रक्चर इस कदर यूनिक है कि आयरिस की फोटो लेके, यानी आंख के अंदर जो हमारी वो है पुतली है, उससे हम इंसान की शिनाख्त कर सकते हैं। इसी तरह ज़बान का स्ट्रक्चर, ज़बान पे जो पैटर्न होते हैं ये भी यूनिक होते हैं हर इंसान में। आप कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर ले लें, अब हम जानते हैं कि वो इस कदर यूनिक है कि उस बॉडी स्ट्रक्चर की तफसीली मैपिंग से हम उस शख्स की शिनाख्त कर सकते हैं। तो दिमाग भी किसी भी दो शख्स से एक से नहीं होते। जैसे शक्ल दो लोगों की सिमिलर हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली एक सी नहीं होती, इसी तरह दिमाग भी दोनों किसी भी दो इंसानों का एक सा नहीं होता। जब हम ये कहते हैं कि इंसान के दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स हैं, तो वो एक औसत है, यानी अगर हम हज़ारों इंसानों के दिमाग में न्यूरॉन काउंट करें तो औसत जो आएगी वो तकरीबन 86 अरब के लगभग आएगी, राइट। कुछ लोगों में कुछ कम होंगे, कुछ लोगों में कुछ ज़्यादा होंगे। दूसरी बात जो जहन में रखने की है कि ज़हानत सिर्फ न्यूरॉन्स के आपसी कनेक्शन से नहीं बनती, सॉरी न्यूरॉन की तादाद से नहीं बनती, उनके आपसी कनेक्शन से भी बनती है। पहले मैंने जिक्र किया था कि हमारे जो अजदाद थे आज से लाखों साल पहले, उनके दिमाग में भी न्यूरॉन्स लगभग इतने ही होते थे जितने हमारे हैं, लेकिन चूंकि उस जमाने में न्यूट्रिएंट्स और ख़ास तौर पे उन्हें प्रोटीन्स बहुत कम मिलती थी, इसलिए प्रोटीन जो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनाने के लिए ज़रूरी है वो कनेक्शन नहीं बन पाते थे, इसलिए उनकी ज़हानत कम थी। तो ज़हानत सिर्फ न्यूरॉन्स की तादाद पे नहीं होती बल्कि उनके आपसी कनेक्शंस पे भी डिपेंड करती है, और ये आपसी कनेक्शंस और न्यूरॉन्स की तादाद ये दोनों जीन से भी मुतय्यन होते हैं और माहौल से भी मुतय्यन होते हैं। बचपन में आपको क्या माहौल मिला, आपको क्या खुराक मिली, आपका जो माहौल था कितना स्टिमुलेटिंग था। अगर जो बच्चे सिर्फ सारा दिन पड़े रहें उनकी ज़हानत मुख्तलिफ होती है, जो बच्चे खेल कूद करते हैं उनकी ज़हानत मुख्तलिफ होती है। तो जो तजुर्बात हैं बचपन के, इनसे ज़हानत पर बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये समझना गलत है कि किसी भी दो शख्स का दिमाग एक सा होगा। किसी भी दो शख्स के दिमाग एक सा नहीं होते। ये एक
اگر آپ ان کی ڈسٹریبیوشن بنائیں تو ایک نارمل ڈسٹریبیوشن بنتی ہے. اگر آپ نے اسٹیٹسٹکس پڑھی ہے تو آپ کو علم ہوگا نارمل ڈسٹریبیوشن کیا ہوتی ہے, جس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں بیچ میں ہوتے ہیں. جو کچھ لوگ ہیں جن کے دماغ میں نیورونز قدرے کافی کم ہوں گے, وہ ایک اینڈ پہ ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دماغ میں نیورونز کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, وہ دوسرے اینڈ پہ ہوں گے جہاں پہ جینیسز ہوتے ہیں. اسی طرح جو آپسی کنیکشنز ہیں دماغ کے, وہ تجربات سے بنتے ہیں, وہ جین سے نہیں بنتے. رائٹ, جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سارے نیورونز ایک دوسرے سے جمبلڈ ہوتے ہیں کنیکشن, لیکن پھر جیسے جیسے اس کے تجربے ہوتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بچہ اردو بچپن سے سیکھتا ہے اس کا ایکسنٹ فرق ہوتا ہے. وہی بچہ جب کہیں دوسرے ملک میں چلا جائے, وہاں پہ جا کے انگریزی سیکھنے کی کوشش کرے یا جرمن سیکھنے کی کوشش کرے, تو اس کا ایکسنٹ لوکل لوگوں سے مختلف ہوتا ہے, اس لیے کہ لوکل لوگوں نے وہ زبان بچپن میں سیکھی ہوتی ہے. بچپن میں دماغ جو ہے بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں پلاسٹیسٹی آف برین, کہ جلدی بہت کنیکشن بنا لیتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ 10-12 سال کی عمر تک وہ کنیکشن فکس ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ کنیکشن نئے نہیں بنتے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی اسکل جو بچپن میں سیکھی جائے, آپ کو پتا ہے کہ کلاسیکل موسیقی کے گھرانے بچوں کی ٹریننگ موسیقی کی 3-4 سال سے شروع کر دیتے ہیں. رائٹ, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو فلیکسیبلٹی جسم میں اور دماغ میں پہلے 10-12 سال میں آتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی. تو یہ ذہانت یا کوئی بھی قابلیت ہو, وہ صرف جین سے نہیں آتی, وہ صرف ماحول سے نہیں آتی, جینز اور ماحول کے تعاملات سے آتی. اور اسی وجہ سے ہر دو شخص مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. تو مجھے امید ہے جی آخری سوال تھا یہ. جی بالکل سر, یہ آخری سوال تھا, اور میں آخر میں آپ سب پارٹیسپینٹس کا اور خاص طور پر سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے بات کیا. جی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب خاص طور پہ جب لوگ سوال پوچھتے ہیں اور وہ موقع ملتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں سائنس سے متعلق جو بھی اگر کوئی غلط فہمی ہے, کنفیوژن ہے, تو اس کو دور کرنے کا, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے 2-2.25 گھنٹے دیے اور میرے جو پریزنٹیشن تھی اس کو سنا اور اس کے بعد سوالات کیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, اور اب ہم جو مولیکولر ایویڈنس ہے ایوولوشن کی, اس پر بھی بات کریں گے. بہت شکریہ.